Good evening, my dear friends. Hello and warm welcome to all the dental GPSC aspirants. We, on behalf of Medical Dental Academy, will providing you guidance for dental GPSC interviews. We have a quality of expert panels who have cleared dental GPSC of Class 2, Class 1, tutors, assistant professor, associate professor. From all the experiences of our past candidates also, we will be providing you a best platform which will be guiding you for securing the highest marks in the interview. First of all, we are AI Medical Dental Academy, which will be providing you all the guidance not only for GPSC interviews but also for the upcoming dental GPSC prelims, all the upcoming dental exams, NEET, MDS, etc. So we have a platform where all the MCQs, all the test series notes are available. In fact, if you are preparing for any exams and you have less time, you can opt our dental notes which are very precise and which are very perfect for preparation in 1 month. So those who are preparing for interview, for them also our dental notes will be useful because we have created our notes in such a way that they will be clearly differentiating. They will be clearly distinguishing between all the cysts, all the tumors, all the lesions, what is specific in this and what is specific in this other. So in this way, when you are answering any question in interview, it matters that not only you know about the thing, but also you know how to eliminate the other options, other available things. So, before our guidance lecture, I would like to tell you something. You have to write notes, whatever I'm speaking, whatever important things you note, and after all, you have to go through this written part by you. This PPT will be sharing with you, but this is just a sample PPT or basic PPT. But the most important thing is whatever I speak, whatever important things I make you note, that is important because at the last moment you have to read these things, what things are to be taken care, what things are not to be taken care. So first of all, let all the students join, and if any of the student has joined, please mark their attendance. Afterwards, we start our lecture or our guidance lecture. First thing about dental GPSC interview is it is very simple thing. Many of the students are not knowing this thing. Okay, first thing about this dental GPSC lecture is they are not checking your dental knowledge. Okay, they don't want to check your dental knowledge. Now you will think that, sir, in interview all the dental questions will be asked. If we don't know, they will be eliminating or they will be throwing us out of the interview, but they are not there to check your dental knowledge. Okay, they are not there to test your general knowledge. Now you will think that they are not testing our dental knowledge, not GK. Then what is the purpose of this interview? So first, your answer or first thing you will write in your notes is the reason for this interview. Okay, or the purpose of conducting interviews. Many times, when you are doing any job, you have certain conditions, you have certain scenarios, you will be given certain task. So which task you will complete first, which task you will complete later, and in which task you will be having proper perfection. So all this matters while doing the task. This is related to your interview. So in interview, they will test your personality first. Okay, as a person, you are suitable for this job. As a person, you are eligible for this job, not as a dentist, but as a person. Okay, so they will first of all check your personality. Second thing, they will check for your content or maturity. Okay, they will give you certain scenarios that in this condition, for example, if you are not having autoclave, then how will you go for proper treatment?
If you are not going having any drugs which are suitable, then what kind of manipulation you will do. So all these things matters about your knowledge. Okay, so personality, then your content as a person, what will be your approach to any disease, what will be approach to your timetable, your schedule, your department, all these things are important. Okay, now third thing is they will check your punctuality. So they will not ask you that by what time you have reached here, by what time you have left this job. They will indirectly ask you few questions which will tell that it is you are punctual or not. And honesty. Certain things like your clinical approach, what will you do if you are having more patients and if you are having lack of instrumentation. So they will check your honesty. Okay. So now you will think that sir, this lecture is for dental GPSC interview. This is not for UPSC. But in short, whatever they are asking, they are not interested in your answer, your content. They are interested in your personality, your speech, what kind of approach you are having for any topic, what kind of approach you are having for any subject, what kind of passion you have, what kind of hatred you have. All these things are important. Okay. Then another topic is your discipline. Okay, discipline is also important as a government employee. For example, if you are having some rules that this will be correct and this will be not my part. So if you are having discipline, most of the students in which you will be joining the college, students will follow you. Students will see your pattern of work, pattern of your lecture, your guidance ideas, your costumes, all matters. Okay, so in short, our interview is totally out of the blue, in which they want to check your extra dental matters, extra GK matters. So now all these things make you a perfect human being. In short, this is not a philosophy lecture, but if they think that this person is the best candidate from your answers, not by looking, so they will ask you different questions. Okay, they will ask you various questions in Gujarati also, in English also. So afterwards we will discuss about language, in which language you have to answer. There is no specific language, but you have to answer in certain language. But we will be discussing in the upcoming slides. Now your attitude also matters while answering. Okay, when you are answering, they will check your attitude. They will try to disorient from the point. They will try to debate with you. So they will check whether you are a proper person, whether you respect all the senior faculties. In this way, all of your personality traits, all of your thoughts, expressions, characters are to be judged by this interview panel. ठीक है, तो अब तक तो आपको सही लगा होगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि सर हमने गलत ये इंटरव्यू बैच ले लिया, क्योंकि ये फिलोसॉफी का नहीं, ये थोड़ा आउट ऑफ द ब्लू है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जब भी आप आंसर देते हो ना, उससे पता चल जाता है कि आपका एटीट्यूड कितना है। ठीक है, फिर आंसर पता चलता है कि आपको कितना नॉलेज है उसके बारे में, और आप डिबेट करते हो कि नहीं, आपका रीडिंग कितना है, आप कॉम्प्रिहेंसिव हो कि नहीं, आपने उसके बारे में अगर नहीं आता है तो क्या क्या एफर्ट्स किए, वो आपका इंट्यूशन पता चलेगा, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी आपकी पता चलेगी। तो फ्रॉम योर आंसर दिस पैनल wants to check all these things. Okay, so in short, we are discussing that even if you know complete dental knowledge or if you know complete GK, you will fail in interview because your style of answering, your style of correcting an answer if you are wrong, your hand movements, your lip movements, your expression, your focusing, your staring, your rate of walking, your standing style, your style of drinking water while interview. All these things will matter. Okay, so let all the students join, and if all the students have joined,
We will request them to mark the presence. अभी तक कोई डाउट हो आपको, कोई समझना हो तो मुझे बताना है, ठीक है? In our guidance lecture, we will be guiding you for dental GPSC. All these are hooks or shortcuts or techniques to secure more marks. Okay, all these are good tricks. कैसे आपको अच्छे मार्क्स मिले इंटरव्यू में दूसरों की कंपैरिजन में, ये आपका एम है इंटरव्यू ज्वाइन करने का। और इंटरव्यू में हमको, हमारा ये मोटो है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल जाए, ठीक है? तो हमने ये प्लान किया है कि हम आपको एक गाइडेंस लेक्चर देंगे और 4 मॉक इंटरव्यू करवाएंगे। मॉक इंटरव्यू में जो भी आप आंसर दोगे, हम सीधा क्वेश्चंस पूछेंगे आपको, आपको आंसर देना है। फिर आपका जो इंटरव्यू चल रहा होगा तब सारे बच्चे भी देखते होंगे कि कैसे आंसर दे रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे उनका स्टाइल है, अगर नहीं आता है तो कैसे वो डिफेंड करते हैं। ये सब तरीके दूसरे कैंडिडेट्स भी देखकर आपका आंसर की स्टाइल वो कॉपी करेंगे, दूसरों की स्टाइल आप भी कॉपी करोगे। तो ऐसे कुल मिलाकर सबके जो इंटरव्यू पैटर्न्स होती है एग्जाम की, वो हम जज करेंगे। एट द एंड ऑफ इंटरव्यू हम मार्क्स देंगे और आपको शेप देंगे। आप तो नॉलेज तो आपके पास है, लेकिन आपको थोड़ा शेप देंगे कि आप ये आंसर देते तो अच्छा रहता, इसमें आप ऐसा बोलते कि मुझे पता नहीं तो भी अच्छा चलता। तो ये सारी टेक्निक्स, सारी ट्रिक्स हम आज आपको बताने वाले हैं, ठीक है? तो इंटरव्यू बैच में आपका वेलकम है। ये है हमारा पहला गाइडेंस लेक्चर। हमने बहुत सारे बच्चों को, पिछली डेंटल जीपीएससी क्लास 2 की एग्जाम थी उसमें 8 से 10 बच्चे हमारे पास थे और उनको सबको अच्छे इंटरव्यू में मार्क्स आए थे, जो प्रीलिम्स में कम थे, लेकिन इंटरव्यू में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गए, बाद में हमको ये फीडबैक दिया कि सर हमने इंटरव्यू ज्वाइन किया इसलिए हमको ये प्लेटफॉर्म मिला जॉब का। So don't waste your time. If you are planning for government job, it is better to join our interview batch for medical dental academy. हमने ऑलरेडी डेंटल नोट्स के बारे में बता दिया है कि डेंटल नोट्स हमने ऐसे बनाए हैं कि आप कोई भी सब्जेक्ट हो वो आप 1 या 2 कलाक में डेंटल नोट्स पढ़ के ही पूरा कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, वरना हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मॉक इंटरव्यू, ठीक है? हमने जो बैच चालू किया है तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, ठीक है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ मॉक इंटरव्यू? टिल यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर एनीथिंग, you will not be perfect. So we have in a process, or we have thought that all the students, if they practice more interviews, so their fear will be gone, their anxiety will be gone, and they will understand that what is expected from the panel, ठीक है? तो ये लास्ट जो मैंने बोला ना, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम पैनल, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि इंडिया में करप्शन है, तो उसको अवॉइड करने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए आप क्या क्या स्टेप्स उठाओगे, ठीक है? तो आपका क्वेश्चन है स्टेप्स टू एलिमिनेट करप्शन। So now whatever you answer, if it is the thing which is expected from panel, you will get good marks. And if you are boasting anything, if you are uh, telling anything which is irrelevant, they will not give you good marks. Okay. Same way in dental, you will be asked many questions. Okay. You will be asked that what will be going for treatment plan if the patient is not affording RCT. ठीक है? So they want something good answer from you, but many of the students tell that RCT नहीं करवा सकता तो दांत निकाल दो, ठीक है? तो ऐसा एब्सर्ड आंसर्स, ऐसे कोई भी हवा में आंसर नहीं देना है, ठीक है? एज ए प्रोफेशनल यू हैव द हैबिट, ठीक है? RCT नहीं अफोर्ड कर सकता है, ठीक है? तो उसके जो क्वेश्चन पूछा है तो वो एक्सपेक्ट क्या क्या करते हैं। पहली चीज ये है कि आरसीटी के ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या है,
ठीक है। तो आरसीटी के ऑल्टरनेटिव्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, पल्प की जो ट्रीटमेंट हम बच्चा करते हैं, इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग, पल्पोटॉमी, पल्पेक्टॉमी, ये सब जो ऑल्टरनेटिव्स है आरसीटी के, ठीक है, आपके हिसाब से ये सब बोलना है कि आई विल ट्राई टू गो विथ दिस। ठीक है, तो पहले आपको पूछा गया है क्वेश्चन, उसका आंसर एक ऑल्टरनेटिव आएगा। फिर दूसरा आएगा कि एफोर्ड करने वाला क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं वो लोग आपका एथिक्स चेक करना चाहते हैं। अब एथिक्स कहाँ आ गया, बार बार आपको लगेगा कि सर हम यूपीएससी का इंटरव्यू नहीं दे रहे, हम जीपीएससी का भी नहीं दे रहे, हम डेंटल का दे रहे हैं, तो आरसीटी और एथिक्स के साथ क्या लेना देना। ठीक है, तो एक एथिक्स की एक चीज ऐसी है कि आपको पहले मोटिवेट करना पड़ेगा। एज ए डेंटिस्ट यू हैव ए रोल फॉर मोटिवेशन। ठीक है, तो दूसरा आपका जो होगा वो आपका अप्रोच चेक करना चाहते हैं कि पेशेंट ने बोल दिया कि मेरे पास रुपये नहीं है, तो आपके पास मोटिवेशन स्किल है, आपके पास उसको इंस्पायर करने की स्किल है, आपको उसको कैसे टैकल करना है, आपको उसके पास से रुपये भी लेना है और ट्रीटमेंट भी कर देना है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो आपको सही इंफॉर्मेशन देना है, तो वो कैसे करोगे, तो उसके लिए आप कैसे कैसे मीडियम यूज करोगे, मास मीडिया करोगे, आईएसी करोगे, फोटोग्राफ्स दिखाओगे, फिर टूथ के बारे में थोड़ा लेक्चर दोगे, तो ये क्या करोगे, ये सब इंपॉर्टेंट है मॉक इंटरव्यू के आंसर्स में। ठीक है, तो इन शॉर्ट कभी भी आप आंसर दो ना, तो आपको अलग अलग एरियाज, अलग अलग डायरेक्शन में आपको आंसर देना है। जैसे कि पहले यहाँ पे मैंने बताया कि पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता आरसीटी, ठीक है, तो आपका ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा। तो पहले आप बताओगे कि डेंटल के बारे में कि सर इतने इतने ऑल्टरनेटिव्स है, तो मैं इतने इतने ऑप्शंस ये मैं रख सकता हूँ। ठीक है, फिर दूसरा आता है अप्रोच, कि आरसीटी नहीं कर सकते तो आप पेशेंट के ऊपर क्या इफेक्ट करोगे कि वो आप आरसीटी ठीक से कर पाओगे। ठीक है, पेशेंट मान जाएगा, तो पेशेंट को कैसे भी तरह मनाना है। ठीक है, और लास्ट में तीसरी चीज, ठीक है, कि आप वो एफोर्ड नहीं कर सकता आरसीटी के लिए, तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो आपके पास कोई ऑप्शन और भी होगा कि चलो मेरे पास तो रुपीज लगेंगे ही लगेंगे, आप अपना स्टैंडर्ड तो लिबरल नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसमें फ्री कर दोगे तो दो कोई तो पेशेंट आ जाएंगे कि सर मुझे भी फ्री में कर दो, मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं आपके पास अवेयरनेस होना चाहिए। कैसा अवेयरनेस, कि भाई यहाँ तो रुपए लगेंगे आरसीटी के, कम भी कर सकते हैं लेकिन फ्री तो होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने इतनी पढ़ाई की है, इतना टाइम बिगाड़ा है, वो सब मैंने जो किया है ना, वो सब किस लिए किया है, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, जॉब सेटिस्फेक्शन, नॉट फॉर मनी। ठीक है, मनी इज एन सेकेंडरी पार्ट, बट जॉब सेटिस्फेक्शन इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा आगे, आप क्यों जॉब करना चाहते हो, इसके साथ ये रिलेशन है। ठीक है, जॉब सेटिस्फेक्शन, नॉट फॉर मनी, आई वांट टू डेवलप माय स्किल्स, ये सब आगे आगे, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन ये तो मैं खाली नजरिया बता रहा हूँ कि जब भी आप आंसर दे रहे हो तो आपको टू द पॉइंट देखो। यहाँ पे तो पूछा गया है कि आरसीटी के लिए पैसे रुपये नहीं पेशेंट के पास, तो आप क्या करोगे। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर मैं टूथ एक्सट्रैक्शन कर दूंगा, बात पूरी। लो, तो ये तो सबको पता है, लेकिन एज ए पर्सन, एज एन इंटेलेक्चुअल गाय, ह्यूमन बीइंग्स आर इंटेलेक्चुअल, so they have a mind which can be applied in many directions. So which approaches you use, which alternatives you use, you are having awareness कि यहाँ पे तो नहीं, बाजू में ट्रस्ट है, वहां पे आपको फ्री में आरसीटी कर देंगे। ठीक है, फिर अगर कैप लगवाना है तो मेरे पास आ जाना, उसके भी रुपए लगेंगे, और कैप कहाँ पे फ्री में लगता है वो मुझे पता नहीं। तो ऐसे भी आप घुमा फिरा के रुपये कमा सकते हो। तो आपकी बात भी सही, दूसरों की बात भी सही, और दूसरों का भी काम चल जाएगा, जो लोग फ्री वाले हैं, ट्रस्ट वाले, आपका भी पेशेंट मोटिवेट हो जाएगा, आपका रेपो भी अच्छा हो जाएगा। फिर वो कहीं ना कहीं ऐसे सोचेगा कि कहीं ना क्यों मैं बाहर चला जाऊँ, यहाँ ही थोड़ा डिस्काउंट करके ये सारवार करवा देता हूँ। तो ये जितने भी टॉपिक्स है, ये इंटरव्यू में आपको आंसर के टाइम वो लोग चेक करेंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो चीज एक्सपेक्टेड है पैनल को, ऐसे आपको आंसर देना है। ठीक है, तो इंटरव्यू में आपको जो माइंड में है कि मैं प्रोस्टो का इंटरव्यू दे रहा हूँ,
तो प्रोस्टो के जितने भी क्वेश्चन है उसका मैं परफेक्ट आंसर दे दूंगा और मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि एक बात समझिए, जितने भी लोग एमडीएस है उसको प्रोस्टो तो आता ही होगा, पेरियो भी आता होगा, जितने लोग पेरियो एमडीएस है। तो वो नॉलेज में डिफरेंस नहीं रहेगा। आपका एटीट्यूड, आपका अप्रोच, आपका आउट ऑफ द ब्लू विजन, कहीं ना कहीं पेशेंट को मनाना, पेशेंट को कैसे क्लियर करोगे। अगर आपके एक सीनियर है वो बोलते हैं कि आप मेरे लिए लेक्चर बनाओ, आप जब कॉलेज ज्वाइन करोगे तो ये बोलेंगे। और उससे भी सुपर सीनियर है वो बोलेंगे कि आप इंस्पेक्शन की तैयारी कीजिए। तो आप दोनों में से किसका काम करोगे? ठीक है, आंसर बताइए मुझे, दोनों में से किसका काम करोगे? जहाँ पे डाउट सेक्शन लिखा है ना वहां पे मुझे आंसर बताइए। तो अभी ये इंटरव्यू कोर्स करने के बाद, अभी ये जो इंटरव्यू का कोर्स है, अभी हमारे लेक्चर के सुनने के बाद आपको जो भी आंसर दे दोगे आप, डाउट्स के जो नीचे सेक्शन है वहां पे और कमेंट में, तो वो क्लियर कट होना चाहिए। उससे मुझे आपका एटीट्यूड, आपका नेचर वो सब पता चलेगा। तो आपको आपकी कॉलेज में एक सीनियर ने बोला कि आप मेरे लिए लेक्चर बना दो, मुझे लेक्चर भी लेना है। ठीक है, और दूसरे ने बोला कि इंस्पेक्शन है उसकी तैयारी कीजिए। ठीक है, लेकिन ये जो इंस्पेक्शन वाला सीनियर है वो आपका सुपर मोस्ट सीनियर है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, और ये एपी है। ठीक है, तो अब दोनों को बुरा ना लगे और ये आपको काम करना है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताना, फिर हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे उसका आंसर। ठीक है, मैंने तो एक एग्जांपल दे दिया आरसीटी वाला। उसके लिए हमने क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स देखा, अप्रोच देखा, अवेयरनेस देखा, कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन भी आता है। ठीक है, मैनिपुलेशन कि आप दोनों को अच्छा लगे ऐसा भी आंसर दे सकते हो, दोनों भी काम करवा सकते हो। वो कैसे करोगे वो आपको आंसर बताना है। ठीक है, अब मॉक इंटरव्यू में क्या होता है, हम जो क्वेश्चंस देंगे ना वो आपको सेम टू सेम एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, पर्सनालिटी के बारे में, नॉलेज के बारे में, वो फिर आपको जो भी आंसर देना है वो परफेक्ट और क्लियर होना चाहिए। ऐसे ऐसे नहीं कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि वो कैसे होता है, उसकी हिस्टोपैथ क्या आती है, तो उसका क्लियर आंसर होता है। ठीक है, उसमें कोई अवेयरनेस वो कुछ होता नहीं है, बट आप आंसर दोगे और दूसरे लोग भी ये आंसर देंगे, उसमें बहुत डिफरेंस होगा। आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो किसी के हिस्टोपैथ तो आपको बता नहीं है, उसके साइड में जो भी चीज हिस्टोपैथ में बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट है कि ये तो आपको ध्यान रखना ही होगा, ये तो बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि पिकेट फेंस आता है। ठीक है, टॉम स्टोन अपीयरेंस, तो ये वर्ड्स तो आपको हाईलाइट करके बोलना है। ठीक है, कि ऐसा आपको दिखेगा, क्योंकि ये एक्सपेक्ट करते हैं आपके जो स्टाफ हो गए डेंटल वाले वो। ठीक है, अब उसके बारे में बताएंगे कौन कौन स्टाफ होता है और कौन कौन नहीं होता है। लेकिन मॉक इंटरव्यू की जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम 4 के 5, उसके ये आपको आंसर देने में कंटेंट होना चाहिए, प्रॉपर आपका बैकअप होना चाहिए। ठीक है, कैसे कि अगर मैं आपको पूछता हूँ, ठीक है, कि व्हाट इज एमिलोब्लास्टोमा, या डिफाइन कीजिए एमिलोब्लास्टोमा का। ठीक है, तो एमिलोब्लास्टोमा का तो डेफिनेशन तो आपको पता ही होगा, लेकिन किसने दिया है? ठीक है, तो रॉबिन्सन ने दिया है। तो आपको शुरुआत ही करनी है अकॉर्डिंग टू रॉबिन्सन। ठीक है, एमिलोब्लास्टोमा ये ट्यूमर है। ठीक है, तो ये आपको इंप्रेशन आएगी कि उनको बैकअप है उनके पास। ठीक है, ऐसे ही मन में आए ऐसा आंसर नहीं दे रहे। तो आपका जो भी आंसर होगा वो बैकअप वाला होना चाहिए, प्रॉपर डिटेल्ड और कंटेंट वाला होना चाहिए। कभी कभार क्या करते हैं, आपको बोलेंगे कि चलो एमिलोब्लास्टोमा के ऊपर लेक्चर ले लीजिए पूरे का पूरा, एमिलोब्लास्टोमा मुझे समझाइए।
कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं इंटरव्यू में कि आई एम नॉट अ डेंटिस्ट, ठीक है, मैं डेंटिस्ट नहीं हूँ और आपको लेमन लैंग्वेज में एमेलोब्लास्टोमा समझाना है, ठीक है, कि एमेलोब्लास्टोमा क्या है। पेशेंट आएगा तो आप थोड़ी उसको इंग्लिश में समझाओगे, एमेलोब्लास्टोमा के बारे में पेशेंट को आपको समझाना है तो वो गुजराती में समझाना पड़ेगा, उसकी लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो भी आपको पूछ सकते हैं। तो ये एमेलोब्लास्टोमा के बारे में सब लैंग्वेज में भी आपको आना चाहिए, इजी लैंग्वेज में भी आना चाहिए, शॉर्ट में भी आंसर आना चाहिए, बड़ा बड़ा इलेबरेट करके भी आना चाहिए। आपको बोलते हैं कि 10 सेंटेंस बोलिए तो भी उसको बोलना है, 50 सेंटेंस बोलिए तो भी आपको बोलना आना चाहिए। तो इन शॉर्ट, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पैनल, यू हैव टू आंसर इट, ठीक है। तो अभी जब आप प्रिपरेशन करोगे तो थोड़ा प्रिपरेशन ऐसे करना है, क्योंकि इसका आंसर देने के लिए आपको क्या करना है, एमेलोब्लास्टोमा होगा तो आप अपनी नोट्स में लिखोगे एमेलोब्लास्टोमा, तो उसकी डेफिनेशन, ठीक है, तो दिया है रॉबिन्सन ने, और क्या है डेफिनेशन वो आपको रटना है, वहां पूछेंगे कभी कभार। फिर उसकी इटियोलॉजी, उसका क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है, उसका रेडियोग्राफिक फीचर्स, उसका हिस्टोपैथोलॉजी, उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस और उसका ट्रीटमेंट प्लान, और मिसलेनियस और एडवांस्ड, ठीक है। तो वो कहाँ पे इम्पैक्ट करेगा कि आपने चालू किया यहाँ से। इंटरव्यू का एक बहुत ही बढ़िया फैक्ट ये होता है कि जब आप कोई भी क्वेश्चन चालू करते हो तो आपको वो रोकेंगे नहीं, आपका कंटेंट चेक करना चाहते हैं कि आपको कितना पता है, ठीक है। अगर जब भी आप अटक जाते हो ना तभी वो नया क्वेश्चन पूछेंगे। तो ऐसे करके करके आपके पास मौका है आपका नॉलेज दिखाने का, आपका कंटेंट दिखाने का, और आपका सिनेरियो को कैसे जज करने का, ठीक है। आपको पूछा जाए कि एमेलोब्लास्टोमा के बारे में मुझे समझाइए, तो आप तो जो रटा हुआ है वो तो बोलने वाले हो ही, बैकअप वाला कि अकॉर्डिंग टू रॉबिन्सन ये है, उसके टाइप्स इतने हैं, एटियोलॉजी ये है, क्लिनिकल फीचर ये है। तो क्लिनिकल फीचर में जो मोस्ट रिलेवेंट है, मोस्ट एडवांस्ड है, जो अभी तक कोई नया इंट्रोड्यूस हुआ होगा, जो बुक में नहीं है, वो भी आप लिख सकते हो और आपके नोट्स में। और जब आपको एग्जाम में इंटरव्यू में पूछा जाए एमेलोब्लास्टोमा, तो आपका आंसर इतना परफेक्ट होना चाहिए बोलने के टाइम, ठीक है, तो वो इम्प्रेस हो जाने चाहिए, ठीक है। तो कभी कभार लोग क्या भूल करते हैं, एमेलोब्लास्टोमा बोलते क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बहुत सारे डेंटिस्ट क्या करते हैं कि सर वो ट्यूमर है और ऑरोनोजेनिक ट्यूमर है और उसको निकालने के लिए रिजेक्शन करना पड़ता है, वो टूथ के साथ जुड़ा हुआ है, तो दे विल नॉट बी एबल टू आंसर इट कंप्लीटली ड्यू टू दे आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पैनल। दूसरी बात, दे आर नॉट अवेयर ऑफ एमेलोब्लास्टोमा, दे आर नॉट अवेयर ऑफ आंसरिंग इन इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपके सीनियर्स होते हैं, गाइड होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, जीपीएससी के एक्सपर्ट होते हैं, वो बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, ठीक है। आप कोई भी आंसर दोगे तो आपका नजरिया, आपका अप्रोच, आपका पर्सनालिटी, आपका गेट, सब उनको पता चल जाएगा कि ये बंदा सही है या नहीं, ठीक है। तो एमिलोब्लास्टोमा के बारे में जो बुकिश है वो तो आपको करना ही है, जो नया नया है वो भी करना है, और लास्ट में मिसलेनियस या एडवांस्ड, ठीक है, उसके बारे में ऐसा क्या है कि जहाँ पे किसी को पता नहीं होता है, ठीक है। तो वो आप बोल सकते हो कि सर एमिलोब्लास्टोमा में मेटास्टेसिस कभी नहीं होता है, ठीक है। तो एक ऐसा लीजन है। फिर आप बेजल सेल कार्सिनोमा के साथ भी बोल सकते हो कि वो दोनों में मेटास्टेसिस नहीं होता है लिम्फ नोड्स में, ठीक है। ये उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर हुआ। रॉबिन्सन आपने बताया साइंटिस्ट, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ। फिर डेस्मोप्लास्टिक जो आता है उसमें दोनों रेडियोलुसेंसी और रेडियो ओपेसिटी भी मिलता है। तो ऐसे करके करके जो भी अलग लगता है आपको कि वो आपको इम्प्रेस करने के लिए काम है एक्सपर्ट्स को, ठीक है, वो आपको बोलना है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपको मौका दिया है। आपको जो भी पता है एमिलोब्लास्टोमा के बारे में वो मुझे बताइए, ठीक है। ऐसे ही कोई भी पेरियो का क्वेश्चन आता है, पेरियो की एग्जाम में, प्रोस्टो की एग्जाम में प्रोस्टो का क्वेश्चन आता है, आपको डेंटिग्रेसिस्ट का क्वेश्चन पूछेंगे कि आप क्या करोगे, ठीक है, ओकेसी का ट्रीटमेंट क्या करोगे। तो जब ओकेसी का क्वेश्चन आता है तो ओएमआरडी का क्वेश्चन है, ठीक है, ओएस का भी क्वेश्चन है,
तो ओएस में भी आपको सर्जिकल अप्रोच बताना है, ओएमआरडी में आपको ये अप्रोच बताना है, लेकिन इंटरव्यू में तो आपको प्रॉपर कंटेंट विथ एक्सप्लेनेशन, रिसेंट एडवांसमेंट्स, क्या क्या नया नया है। तो उसके लिए आप क्या क्या करोगे, पहले तो जो भी आपका लेक्चर है ये आपको देख रहे हो, ये आपको नोट्स बनाना है इस साइड में, फिर उसको आपको अप्लाई करना है। जब भी आप पढ़ते हो तो एक साइड बुकिश आएगा और नया नया जो आएगा वो आपको इंटरनेट के सोर्स से आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके करके आपको ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज, जो अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं आपके इंटरव्यू में कौन होगा, जो प्रोफेसर लेवल के लोग होंगे वो, तो उनको ये सब जो नया नया होता है, रिसेंट एडवांसमेंट्स होते हैं, कौन सी नई टेक्निक होती है, ये उनको बहुत ही अच्छा लगता है कि ये प्योर एकेडमिशियन है, उसको एकेडमिक्स में बहुत ही इंटरेस्ट है, अच्छे आर्टिकल्स है, अच्छे जर्नल्स में उन्होंने पब्लिश करवाया है, तब जाके आपकी आपकी इंप्रेशन अच्छी आएगी और तब जाके वो सिलेक्ट करेंगे कि नहीं ये बच्चा या बच्ची को तो मुझे लेना ही पड़ेगा अपने डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो जीडीसी वाले स्टाफ होंगे, जामनगर वाले स्टाफ होंगे, तो उनको तो यही पता चल जाएगा कि इनका नॉलेज परफेक्ट है। कैसे पता चलेगा, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एमिलोब्लास्टोमा पूछ लिया, प्रोस्टो में जाओगे तो मेजर कनेक्टर पूछेंगे, माइनर कनेक्टर पूछेंगे, प्रिसिशन अटैचमेंट पूछेंगे, कैरियो में जाओगे तो पॉकेट पूछेंगे, इंफ्राबोनी डिफेक्ट्स पूछेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन पूछेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका डेंटल का नॉलेज नॉलेज तो होना ही चाहिए, बट आपका अप्रोच जो अलग है, ये आपने ज्वाइन किया हमारा इंटरव्यू क्लास, उसमें आपको अलग क्या मिला कि सब जो पढ़ते हैं उससे ज्यादा भी आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, जैसे कि ओकेसी है, तो उसको पहले फिस्ट बोला दिया दिया था नाम, फिर उसको ट्यूमर कर दिया। ठीक है, फिर उसको वापस सिस्ट कर दिया। तो वो कौन से साल में ये किया, पहले सिस्ट था, उसको ट्यूमर का नाम दे दिया, फिर लास्ट में एसोसिएशन ने बोला कि उसको सिस्ट ही बोलो। तो ये नॉलेज मुझे पता है। ठीक है, मैं तो प्रोस्टोडोंटिस्ट हूँ, लेकिन अगर इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन आता है ओकेसी का, तो मैं उसकी हिस्ट्री से चालू करूंगा। ठीक है, उसकी हिस्ट्री सर ये है, उसका डेफिनेशन ये है, उसका ओरिजिन ये है, उसका क्लिनिकल फीचर्स ये है, हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर्स ये है। तो ऐसे डिटेल्ड आंसर मैं दूंगा टाइम लेकर, क्योंकि उसको टाइम का एक इम्पोर्टेंस होता है। सोचिए, आप अगर एग्जाम इंटरव्यू में गए, ठीक है, तो उनके पास टाइम कम होता है आपको चेक करने के लिए, और आपके पास टाइम बहुत ही ज्यादा है आपको प्रूव करने के लिए। कैसे, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो हमारे बच्चे बहुत ही स्मार्ट होते हैं, मतलब फिर फेल हो जाते हैं स्मार्ट गिरी बताकर, सीधा बोल देते हैं कि मेरा ये कोड है। आपको एक कोड दिया जाएगा, नाम नहीं मिलता है वहां पे, आपको कोई भी कोड दिया जाएगा, ABC PQR, तो फिर आपका नाम उस दिन वही हो जाता है। तो आपको इंटरव्यू में बोलना है कि आई एम ABC फ्रॉम अहमदाबाद और आई एम डेंटिस्ट। तो वो कुछ लोग ऐसे इंटरव्यू पूरा करके अपने अगले क्वेश्चंस की राह देखते हैं, और कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं जो आप भी बाद में ट्राई करोगे, इंट्रोडक्शन दोगे ना तब भी आपकी पर्सनालिटी पड़ जाएगी। तो कम से कम जितना हो सके उतना टाइम उसमें आपको ज्यादा लेना है। आप ऐसे तैसे नहीं हो, आप दूसरों से अलग क्या हो, आप में क्या है कि आपको सिलेक्ट करना चाहिए, ये सब आपको इंट्रोडक्शन में बता देना चाहिए। अगर आप नहीं बताओगे तो आपको वो फिर से यही क्वेश्चन पूछेंगे, आप में खास क्या है, आप में बुरी चीज क्या है, आपको हम क्यों सिलेक्ट करें। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि इंट्रोडक्शन वाला जो क्वेश्चन है वो आपको आपकी आपकी नोट्स में लिखना है, और आपका जो इंट्रोडक्शन होता है जो आपको पहले वो लिख लेना है। ठीक है, इंटरव्यू में थोड़ा ऐसा समझो कि आपको इंटरव्यू का नोट्स बनाना है, कि आप इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन में क्या क्या बोलोगे, तो आप सेंटेंस फ्रेमवर्क करिए प्रॉपर, फिर उसको रट लेना है। ठीक है, कभी कभार आप पंक्चुअलिटी और जो बोलते हैं ना कि हम अपने हिसाब से बोले तो भी सही है, लेकिन ऐसा प्रिपरेशन करके जाओगे तो बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस गेन होता है कि मुझे इंटरव्यू में ये चीज ही बोलना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन का पहला क्वेश्चन आपको लिखना है और मुझे व्हाट्सएप करके बताना है कि सर मैंने इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन में ये इतना सोच के रखा है, ये सही है गलत है, इसमें क्या करूँ क्या नहीं। तो ऐसा डिस्कशन जब तक आपका इंटरव्यू है तब तक आपको व्हाट्सएप के माध्यम से इंटरव्यू के
डिस्कशन चलते रहेंगे। ठीक है, ये तो गाइडेंस लेक्चर है। फिर हम 4 मॉक इंटरव्यू करवाएंगे, लेकिन बीच में आपको प्रॉपर गाइडेंस भी देंगे कि आपको ये क्वेश्चन में ये आंसर देना है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। तो मॉक इंटरव्यू का मेन कॉन्सेप्ट है आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए, नए नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिले और आपका इवेल्युएशन हो जाए, अलग अलग क्वेश्चंस में आप कैसे आंसर देते हो वो। ठीक है, अब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। एनहेंसेस कम्युनिकेशन। ठीक है, आपको कम्युनिकेशन स्किल आपको होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे एक सर बैठे होंगे मेन, उसके आजू बाजू 2 स्टाफ बैठे होंगे, यहाँ भी 2 स्टाफ बैठे होंगे, आपको यहाँ बिठाएंगे। तो जब आप इनको आंसर दे रहे हो तो यहाँ देखना है, इनको आंसर दे रहे हो तो यहाँ देखना है, यहाँ देना है। तो कभी कभार क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि एक स्टाफ को ही देखते रहो, आपको अगर कोई भी आंसर पूछे क्वेश्चन और आपको आंसर देना है तो स्टार्ट वहां से कीजिए, लेकिन सब स्टाफ को थोड़ा थोड़ा देखते देखते आंसर बोलना है। ठीक है, तो ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल हुई। ठीक है, वरना रोबोट होगा तो क्या करेगा, जिसको क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको ही देख के आंसर बोलेगा, इनको नहीं देखेगा, इनको नहीं देखेगा, इनको नहीं देखेगा और इनको नहीं देखेगा। तो उनको पता चल जाएगा कि ये रटने वाले लोग हैं, ये कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब भी आप स्पीच देते हो तो सब लोगों को आपको ध्यान से देखना है, उनके एक्सप्रेशंस देखने हैं, उनको समझ में आ रहा है नहीं वो भी देखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन जब आप करोगे तब। ठीक है, फिर स्ट्रेंथ आपकी क्या है इंटरव्यू के टाइम और वीकनेस क्या है वो भी आपको या मॉक इंटरव्यूज के बाद पता चलेगा। और सक्सेस रेट। ठीक है, जितने भी लोग मॉक इंटरव्यू हमने करवाए थे पिछले साल वो सब पास हो गए। तो यही मौका है कि आप भी आपके इंटरव्यू में अच्छे से अच्छा स्कोर करोगे। मेरा भी यही था, मैं प्रीलिम्स में थोड़े मार्क्स के पीछे था। मैंने जब डेंटल जीपीएससी क्लास 1 की एग्जाम दी तो मेरा 10 मार्क्स का डिफरेंस था, प्रीलिम्स में किसी के पीछे था मैं। ठीक है, तो मुझे इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करना था, तो मैंने वो 15 मार्क्स का गैप ले लिया, तो वो मैं अच्छी तरह से सिलेक्ट हो गया इंटरव्यू में। तो ये रेशियो रहेगा। ठीक है, आप जितने ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज दोगे तो आपका सक्सेस रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, अब इंटरव्यूज में आपको बिहेवियर चेक करेंगे, टेक्निकली आप कितने स्ट्रांग हो, मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में, आप कौन कौन से नए टेक्निक्स यूज करोगे, आप में क्या क्या एबिलिटी है, ये सब आपको देखने के लिए मॉक इंटरव्यूज लेंगे हम। और फिर आपका चेक करेंगे आपका कौन सा टेक्निकल गाइडेंस है। केस इंटरव्यूज, अलग अलग केस बेस्ड सिनेरियोस भी देंगे। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया ना कि कोई सीनियर ये बोलता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ये बोलता है, तो आप क्या करोगे। फिर स्ट्रेस इंटरव्यूज, आपको जब स्ट्रेस दिया जाए तो आप कैसे हैंडल करोगे और आपको क्या क्या फील होगा। कभी कभार तो आपको पता ही नहीं होगा कि आंसर क्या है, तो आप कैसे आंसर्स दोगे, ये सब आपको मॉक इंटरव्यूज में पता चलेगा। ठीक है, अब स्टार मेथड, ये हमने प्लान किया है आपके लिए कि आपको एज ए स्टार, देखिए पहले सिचुएशन को बनाना है। ठीक है, जो आप कंडीशन को आपको दी जाए तो आपको सिचुएशन को पहले फेस करना है। ठीक है, फिर आप उसमें जाकर, ठीक है, आपको अगर बोला जाए कि अगर आप कॉलेज में ज्वाइन हो जाओगे तो आप क्या क्या करोगे, तो फिर आपको सिचुएशन बताना है आपकी कि आपको क्या क्या चीज करनी होगी, फिर आप कैसे टास्क करोगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट में नहीं बताना है कि मैं लेक्चर लूंगा, मैं ये करूंगा, आपको डिटेल में बताना है कि एवरीथिंग गिवन, everything task or every task given by my seniors or every challenges given by my students, this will be my motive. Okay, तो ये जो मैंने बोला वो सब जगह से बोला। आप स्टाफ हो तो आपको एचओडी का भी प्रेशर होता है, सीनियर्स का भी होता है और बच्चों का भी होता है, तो सब डायरेक्शन में आपको आंसर देना है। ठीक है, फिर एक्शन, तो आप कैसे उसको टैकल करोगे। ठीक है,
तो एक्शन तो बहुत सारी होती है, ठीक है। अभी आप लेक्चर बताकर वो समझा सकते हो, उसको रियली काम कर सकते हो, उसको दूसरों को दे सकते हो, उसको शॉर्टकट्स भी बना सकते हो, उसको इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीजें आपको कहीं ना कहीं काम आएगी। और रिजल्ट, कोई सिनेरियो में से आप बाहर निकले तो आपने क्या रिजल्ट लिया और आपने कैसे किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बहुत सारी बार पूछते हैं कि अगर आपको इंस्पेक्शन का काम दिया जाए तो आप कैसे टैकल करोगे, ठीक है। आपको रिसर्च करना आता है कि नहीं, कैसे रिसर्च करोगे, कैसे बच्चों को समझाओगे इजी, ठीक है। तो ये कौन सी टेक्निक है आपको चेक करने की कि आप एज ए पोटेंशियल कितना रखते हो कोई भी टास्क को हैंडल करने के लिए, ठीक है। ये सब आपको वहां पे बताना होगा। अब हम आते हैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, वो मुझे बता दीजिए, ठीक है। कॉमन इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने से पहले हम आपको कॉस्ट्यूम्स के बारे में बता देते हैं, या आपकी ड्रेसिंग सेंस, ठीक है। बॉयज होते हैं तो जनरली कोई सूट पहन के आता है, कोई लोग व्हाइट शर्ट पहन के आते हैं, ठीक है। ऐसे ट्रेडिशंस होते हैं। तो फॉर्मल ड्रेस में जाना होता है, जहाँ आपका वर्किंग प्लेटफॉर्म होता है। आप एकेडमिक्स ज्वाइन करोगे कॉलेज में, तो एज ए आपके कोई रीडर होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, तो वो कितना फॉर्मल लुक लेकर आते हैं, ऐसे आपको जाना है कॉलेज में, डेंटल कॉलेज में, ठीक है। तो फॉर्मल लुक में आपको जाना होगा। बहुत सारी गर्ल्स साड़ी पहन के आती है, बहुत सारे नहीं पहनते हैं साड़ी। तो ऐसे फॉर्मल लुक में जो आपको लगे ठीक, वो मैटर करता है। लेकिन मेरे हिसाब से कॉस्ट्यूम का जो है, वो आप सिंपल सोबर होकर जाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि दिनेश सर जो है, जो दिनेश दासर सर है, चेयरमैन थे जीपीएससी के, उन्होंने भी ये चीज बताई थी कि क्लोथिंग का एक सेंस तो होना ही चाहिए, ठीक है। बट आप कितना भी अच्छे कपड़े पहन के जाओ, लेकिन आपको क्वेश्चंस नहीं आते, वो नहीं। इन शॉर्ट, आपके क्लोथिंग सेंस आपके कैरेक्टर के साथ मैच करना चाहिए, प्रॉपरली वेल ड्रेस होना चाहिए। कुछ लोग टाई पहन के जाते हैं बच्चे, ठीक है, क्लीन शेव करके जाते हैं। अभी तो नया ट्रेंड आया है, विराट कोहली बन के जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब मैटर मेरे हिसाब से नहीं करता है, ठीक है। हाँ, जीन्स पैंट पहन के नहीं जाना चाहिए, ऐसे सिंपल सोबर आप डॉक्टर लगो, आप कॉलेज में काम कर रहे हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो, ऐसे लगो, ऐसे करके आपको जाना चाहिए, ठीक है। तो कॉस्ट्यूम्स के बारे में आपको अभी आइडिया आ गया, क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या नहीं, ठीक है। अब कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो कहीं ना कहीं कोई भी इंटरव्यू आप जाओगे, ठीक है, डेंटल जीपीएससी का है, यूपीएससी का है, तो सब जगह एक ही चीज तो कॉमन ही है, ठीक है। वो चीज क्या कॉमन है? आपका इंट्रोडक्शन। तो ये हमारा मेन क्वेश्चन है, जो आपको सिलेक्ट भी कर देगा और आपको एलिमिनेट भी करवा सकता है, ठीक है। कहीं भी आप जाओ ना, तो इंट्रोडक्शन वाला क्वेश्चन ये लोग पूछते ही है। तो इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले लैंग्वेज के बारे में बता देता हूँ। जो क्वेश्चंस जो लैंग्वेज में पूछा गया हो, उसका आंसर उस लैंग्वेज में देना है, ठीक है। तो शुरुआत में डेंटल जीपीएससी के जो एक्सपर्ट होते हैं, जीपीएससी के स्टाफ को होंगे, वो आपके चेयरपर्सन होंगे इंटरव्यू के। चेयरपर्सन का मतलब क्या है कि वो ही आपको जज करेंगे, ठीक है। और ऑक्सिलरीज होंगे आपके सब सब्जेक्ट वाले स्टाफ, साइड में बैठे होंगे, ठीक है। 5 होंगे तो 2 इस साइड, 2 उस साइड, और चेयरपर्सन बीच में, और आपको यहाँ पे बिठाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप एंटर होगे, ठीक है, तो आपको पहले पोलाइटली पूछना है कि मैं कम इन सर या मैं कम इन मैम, ठीक है। फिर आपको विश करना है सब स्टाफ को देखकर, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर, ऐसे करके। और फिर वहां पे चेयर के बाजू में खड़े रह जाना है,
ठीक है। फिर वो आपको रिक्वेस्ट करे या इंसिस्ट करे कि आप बैठ सकते हो, अलाउ करे, ठीक है, तब जाके आपको चेयर पर बैठना है। बैठने के टाइम आपको स्ट्रेट रहना है, ठीक है, ऐसे कोई विदाउट सपोर्ट रखना है। और आपके हाथ है वो, कोई लोग फोल्ड करके बैठते हैं, कुछ लोग सीधे जो चेयर के आर्म्स होते हैं उस पर रखकर बैठते हैं, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, चेयर पर्सन आपके सामने होगा, ठीक है, और आप उनके सामने होंगे, साइड में आपके स्टाफ होंगे। आप जब भी अंदर जाओ तो आपको पोलाइटली पूछना है कि मैं कम इन सर, वो यस बोलेंगे तो आपको जाना है, और फिर सबको विश करना है पोलाइटली बाय बोइंग समवन, ठीक है, थोड़ा झुक के आपको विश करना है। और फिर आपकी जो चेयर है उसके बाजू में बैठ जाए, मतलब खड़े रहना है। फिर आपको बोलेंगे कि हैव ए सीट, तो आपको बैठ जाना है। और फिर बैठने के टाइम प्रॉपर पोजीशन मेंटेन करना है, ठीक है। थोड़ा रेस्ट नहीं लेना है पीछे, डायरेक्ट बैक होना चाहिए। फिर ट्रंक यूनिफॉर्म होना चाहिए। आपका जो हैंड्स है वो साइड के आर्म पर रखना चाहिए, कुछ लोग फोल्ड करते हैं, ठीक है। ये सिटिंग पोजीशन एटिकेट्स आपको पहले भी बता दिया मैंने। फिर आप जब बैठोगे ना, फिर पहला ही क्वेश्चन सबको, मुझे किसी को भी यही आता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। अब जब भी ये असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम है, तो आई रिक्वेस्ट यू, यू शुड आंसर इन इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश नहीं आंसर देना है तो भी आप गुजराती प्रिफर कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इंग्लिश का थोड़ा पॉइंट्स अच्छे रहते हैं। अब आपको पूछा गया है कि તમારા વિશે થોડું બોલો गुजराती में, देन यू हैव टू आंसर इन गुजराती। हिंदी में पूछा गया है तो आपके बारे में बताइए, तो हिंदी में बोलना है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज इज नॉट ए बैरियर इन दिस क्वेश्चन, ओके। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, आपको अगर डाउट है तो आप सीधा बोल सकते हो कि सर इफ यू प्लीज अलाउ मी, कैन आई स्पीक दिस इन गुजराती, ठीक है। ऐसा भी आप करके पूछ सकते हो। और अगर नहीं ये करना है तो भी आप गुजराती बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन जो लैंग्वेज में पूछा गया है आंसर, उसको आपको बोलना है, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसा नहीं कि गुजराती में स्टार्ट करिए, इंग्लिश में स्टार्ट करिए। आपको गुजराती में पूछा गया है कि તમારા વિશે થોડું અમને કયો, introduction આપો તમારું, તો you have to answer in Gujarati. But if it is asked in English, please introduce yourself, then it is better to answer in English only, कि I am Dr. ABC, ठीक है। आपको नाम दिया जाएगा, कोड दिया जाएगा, आई एम डॉक्टर एबीसी फ्रॉम वडोदरा, आई हैव पास्ड माय बीडीएस फ्रॉम दिस। तो ये इंट्रोडक्शन आप क्या क्या दोगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन में क्या क्या आंसर देना है और कैसे करना है, ठीक है। लैंग्वेज का आपने समझ लिया, ठीक है। अभी इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या बोलना है वो मैं आपको अभी लिखवा रहा हूँ। पहले तो आप कौन हो, खाली आपको नाम नहीं बताना है, बाकी आपको सब बताना है कि आप कौन हो, ठीक है। फिर आपको आपका बैकग्राउंड बताना है, फिर आपका पोटेंशियल बताना है, ठीक है, और आपकी एडजस्टेबिलिटी, और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो, वरना कुछ नहीं। अब ये जितने भी पॉइंट्स है वो मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। अगर मेरा इंट्रोडक्शन पूछा जाए तो मैं बोलूंगा कि आई एम डॉक्टर पी क्यू आर फ्रॉम सूरत, ठीक है। आई हैव पास्ड माय बीडीएस फ्रॉम जीडीसी अहमदाबाद इन द ईयर ऑफ 2010 in the first attempt. After passing BDS, I cleared AIPG entrance exam in the first attempt and secured admission in MDS seat in GDC college. While going for MDS seat, I was preparing for this UPSC also. So I also cleared one.
attempt of general UPSC exam, but unfortunately I could not clear the mains exam. Okay, after passing MDS, I joined academics because I am having passion in teaching students. Throughout my curriculum as BDS MDS, I was guiding students, my undergraduate students, and was busy with all this exam preparation. Okay, so after passing MDS, I have joined this college as a senior lecturer, and in that time, I had devised various plans and various methods of going with easy curriculum, finishing and helping students to gain more marks. Okay, after this job, I joined this college due to money issues in the previous college, and in this new college also, I had developed my abilities as a clinician. So in the previous college, in the previous college, I had gone for development of my academics, but in this clinic or this hospital, I had developed my as a dentist skills. I developed my dental skills more, and now I am here before you to uh, be selected for this assistant professor GPS, the dental GPSC. uh, I am having good opportunities for this job because I have proper experience and I am able to handle all the difficult situations with my experience. Extraordinary thing about me is I have published various articles, various conferences I have attended. So in this way you have to answer your introduction. ओके, सो यू विल नॉट स्टॉप. ठीक है, आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया है तो आपको ये सब चीजें बोलना है. ठीक है, मुझे थोड़ा मैनिपुलेट करके बोलना था, मेरा असली इंट्रोडक्शन होता तो और अच्छा होता, मैं अटकता नहीं. लेकिन ये थोड़ा मैनिपुलेट आपको करने, आपको सिखाने के लिए मैं बता रहा था. तो ऐसे अटकना ना पड़े, इसलिए आप क्या करोगे, आपकी बुक में आपका इंट्रोडक्शन लिख के मुझे व्हाट्सएप में भेजोगे कि सर मेरा ये इंट्रोडक्शन कैसा लगेगा, क्या होगा, क्या नहीं, आपको क्या क्या है, क्या क्या नहीं. ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए. ठीक है, फिर वो इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन आप लिखोगे, फिर आपको बोलना भी आना चाहिए. 1 मिनट. थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, कोई बात नहीं. तो अभी जब आप इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन इज द मेन क्वेश्चन दे विल आस्क यू टू चेक ऑल योर पैटर्न, all your adjustability, your extraordinary achievements, in what directions you want to go ahead. ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन होगा. आप सिटी भी बता सकते हो, आपका अचीवमेंट भी बता सकते हो. हेलो।
So your introduction is the main part. Okay, it is the core part of your interview. In introduction, we will be able to explain what you are, who you are, what you can do, what is extraordinary in you, and what kind of circumstances you have faced in the past, what kind of decision making you have. All these things you have to go in your interview part. Okay, so if I am not wrong, you have to go with the introduction part in your notes and WhatsApp me. After you write your introduction, you have to WhatsApp, sir, this is my best introduction I have planned. If there are any changes, please let me know. Okay. Now, what are your strengths and weaknesses? Okay. So as I mentioned, as I mentioned, you have to answer in your introduction only. आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या है, बट वीकनेसेस कभी बताना नहीं है. ठीक है, खाली स्ट्रेंथ बता दीजिए तो सही है. लेकिन आपको पूछेंगे वो कि आप कहाँ कहाँ पे लैग कर रहे हो, तो मैं आपको एक आंसर बता रहा हूँ कि सर मुझे अभी रीडिंग जो है ना वो नहीं अच्छा लगता. आप ये भी बता सकते हो कि सर अभी मुझे मेरी वीकनेस ये है कि थोड़ा सर अभी टाइम मैनेजमेंट थोड़ा दिक्कत रहता है. ठीक है, ऐसे बहुत आंसर्स आपको मिल जाएंगे. ठीक है, आपकी वीकनेसेस क्या है. कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर मेरी वीकनेस ये है कि मुझे लॉन्ग स्टैंडिंग वर्क नहीं पसंद है, मुझे कभी कभार ये हार्ड ऑपरेशन जो होते हैं सर्जिकल वो नहीं पसंद है. कोई कोई भी आंसर बोलो वीकनेसेस का. ठीक है, तो फिर आपको ये पूछेंगे कि उसको ओवरकम करने के लिए आप क्या क्या करोगे. ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो वीकनेसेस में कि सर मुझे डेंटल में तो कॉन्फिडेंस है थोड़ा, लेकिन थोड़ा जीके थोड़ा वीक है. ठीक है, तो वो भी अब मैं ट्राई करूंगा कि थोड़ा मेरा इंक्रीज हो जाए. फिर कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं कि सर मेरे में तो वीकनेस है ही नहीं. वो भी सही है, कहीं ना कहीं ये आंसर क्वेश्चन जो है वीकनेसेस वाला, वो कहीं ना कहीं आपको अलग आंसर देना पड़ेगा. ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ तो बोलोगे पंक्चुअलिटी है, ये डिसिप्लिन है. वीकनेसेस आपको बोलना है कि सर थोड़ा अभी जब कॉलेज में था तो थोड़े हम एक्टिव थे, अभी थोड़ा थोड़ा हम टाइम मैनेजमेंट नहीं अच्छा रहता है, वो अभी आप बता सकते हो. ठीक है, वो भी आप बता सकते हो. कुछ लोग तो ये भी बोल सकते हैं कि सर अब मुझे वीकनेस ये है कि मुझे मोबाइल की आदत हो चुकी है. ठीक है, तो ये आपको बताना होगा. ठीक है, वीकनेस के बारे में. लेकिन जो सही सच्ची वीकनेस होती है वो तो हमको भी पता होता है क्या क्या है, लेकिन वो नहीं बताना है. ऑनेस्टी यहाँ पे यूज नहीं करना है. ये प्री प्लान्ड आपको नोट्स बनाना है. ठीक है, प्री प्लान्ड उसके आंसर होने चाहिए. प्री प्लान्ड में क्या क्या आएगा, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपका इंट्रोडक्शन क्या है, आपकी हॉबी क्या है. ठीक है, तो अगर आप हॉबी बोलोगे कि मेरी हॉबी रीडिंग है, ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि नॉवेल्स में और उसमें क्या डिफरेंस है, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या डिफरेंस है. ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं. ठीक है, तो ये मेरा मतलब ये है कि आप जो भी आंसर बोलोगे ना, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन उसके रिलेटेड आएगा. तो ये हॉबी बोलोगे आप कि सर मेरा हॉबी है चेस खेलना, तो आपको लिमिटेड क्वेश्चंस आएंगे कि चेस में कौन चैंपियन है, इंडिया से कौन खेलता है, उसमें कितने रूल्स होते हैं, कौन कौन से वो आइटम्स होती है चेस के अंदर. ये लिमिटेड हो गया. ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं रीडिंग, कुछ लोग बोलते हैं क्रिकेट खेलना, तो क्रिकेट के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो आपको हॉबी के बारे में पूछा जाएगा. गर्ल्स के पास तो अच्छा आंसर है, सर मेरी हॉबी है कुकिंग. ठीक है, तो फिर आपको पूछेंगे कि कुकिंग के बारे में क्या क्या है, कौन कौन से अच्छे शेफ है, उसके क्वेश्चंस आने वाले ही है. तो इंटरव्यू का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप इंटरव्यू देते हो तो आपको ये समझना है कि आप जो बोलोगे, आपकी स्पीच होगी, उससे ही नया क्वेश्चन आएगा. तो यू आर क्रिएटिंग योर ओन वे, या यू आर डिगिंग योर ओन अडल. ठीक है, तो ये आप समझना, स्पीच में टू द पॉइंट रहना है, और जो आपको पक्का कॉन्फिडेंस है वही चीज बोलनी है. ठीक है, ऐसा ना हो कि आप कुछ भी बोल जाओ, फिर आपको उसके बारे में पूछे और आपको ना आए. ठीक है,
और हाँ, ब्लफ नहीं करना है। ब्लफ का क्या मतलब है? अगर आप पेरिडोंटिस्ट हो या ओएमआरडी हो, आप स्पेशलिस्ट, ठीक है, तो आपको कोई प्रोस्टो का क्वेश्चन पूछा जाए कि ये प्रोस्टो में क्या होता है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि सर, एज ए स्पेशलिस्ट आई एम हैविंग लैक ऑफ नॉलेज इन दिस टॉपिक एट प्रेजेंट, बट आई मेक श्योर दैट इट विल बी ओवरकम इन दिस अपकमिंग डेज। ठीक है, तो ये आपको आंसर बोलना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ब्लफ नहीं करना है, ये चीज याद रखना है। आप जो भी आंसर बोलो ना, वो आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन आएगा, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस पोजीशन। ठीक है, कि आपको ये जॉब क्यों करना है, आप ये जॉब आपको क्यों करना है। आप तो ऐसे ही सेट हो, आप क्लिनिक चलाते हो, आप स्पेशलिस्ट हो, बाहर तो बहुत सारे रुपये हैं, तो आप क्यों ये जॉब करना चाहते हो। ठीक है, तो आपको ये आंसर बोलना है। ठीक है, कि sir, since my MDS or since my BDS, I had a goal of going in academics. So for this purpose, I have chosen MDS and I have prepared for this. After passing MDS, I have an interest in research and I am interested in going further in academics only. I have a good talent for teaching students. I have a good profile of creating good lectures, and I am willing to be update with my subject. With the recent advances, I would like to search and go for newer techniques. So ये आपका आंसर होगा, वाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस पोजीशन। ठीक है, फिर लास्ट में ये भी बोलना है कि सर, वन मोर थिंग, इसकी सैलरी भी अच्छी होती है, तो मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा और आई कैन रन माई फैमिली विथ डेवलपिंग माई स्किल्स। सो दिस कैन बी ए गुड आंसर। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में अगर आपने फिर बोला होगा, कुछ भी बोला होगा कि मैं ये जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आएगा कि ऑलरेडी आप एक जॉब तो करते हो, तो भी आपको दूसरी जॉब क्यों करना है, ये जॉब हमारी क्यों लेना है, एक तो आप जॉब करते ही हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ये आंसर देना होगा। कौन सा आंसर? कि सर, ये मेरा पुराने वाली जॉब है ना, उसमें कहीं ना कहीं मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। अब ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो सब थोड़ा क्लिनिकल वाला है, पर मुझे रिसर्च और एकेडमिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो ये भी मुझे लगता है कि ये थोड़ा बेटर है उससे। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो मुझे पसंद नहीं था, मैं ये ऐसे ही टाइम निकालने के लिए करता था। कभी भी ऐसा आंसर नहीं देना चाहिए कि आपकी पर्सनालिटी की इंप्रेशन डाउन हो जाए। ठीक है, पिछली जॉब में सर जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता ना चाहिए, वो नहीं मिलता था। मैं खाली दिन ब दिन पेशेंट ट्रीट करती थी, लेकिन मुझे सर रिसर्च और नए नए पेटेंट, नए नए आर्टिकल्स में और बच्चों को पढ़ाने में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था पहले से ही। लेकिन ये जॉब मुझे मिल गई थी, तो मैंने इसलिए ऐसा सोचा कि कोई ना कोई स्किल हमारी बढ़ेगी, तो एक पॉजिटिव रे ऑफ होप की तरह मैंने वो जॉब ज्वाइन कर लिया था। और इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी थी कि मुझे वो जॉब करनी पड़े, लेकिन वो जॉब भी मैंने एक्टिवली की और क्लिनिक्स में बहुत सारी स्किल मैंने डेवलप कर लिया। ठीक है, लेकिन मेरा जो कि पैशन एकेडमिक्स में है, तो मुझे एकेडमिक्स में ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट है और मैं एकेडमिक्स को ही चूज करूंगा। ठीक है, तो ये आंसर्स आपको डिटेल में देना है। ठीक है, कुछ लोग क्या बोलते हैं कि सर, पिछली जॉब में मुझे टाइमिंग नहीं अच्छा लगता था, मुझे पगार अच्छी नहीं दे रहे थे, वहां पे खड़ूस लोग थे, वहां पे मुझे जमता नहीं था। ऐसे आंसर्स नहीं देना होते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, आपको अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। आई होप अभी आप लेक्चर लाइव देख रहे हो, तो यहाँ पे नीचे प्रेजेंट वाला लगा दीजिए, हियर प्रेजेंट लगा दीजिए। फिर आपको पूछा जाएगा, आपने बोला कि सर इंट्रोडक्शन में आपके पास जॉब है, तो मैं उसका मैंने समझा दिया। ठीक है, एक जॉब का समझाया। अब आपने बोला कि जॉब नहीं सर, मेरा तो क्लिनिक है, अपना खुद का क्लिनिक है, तो भी आपको पूछेगी कि आपने बीडीएस किया, एमडीएस किया, क्लिनिक है, उसमें अच्छी इनकम है, तो फिर आप क्यों ये जॉब करना चाहते हो।
तो यही आंसर कहीं ना कहीं घुमा फिरा के बोलना है कि इन clinic sir I have a good skills of treating the patients, but my passion was to go for academics since I'm interested in research and interested in this publications articles. और ये अगर कॉलेज में अगर लग जाती हूँ मैं एकेडमिक्स में तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा, मुझे थोड़ा पढ़ने में भी मुझे थोड़ा जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो कि सर अगर क्लिनिक होता है ना तो मैं वो अपनी फैमिली में खुद हैंडल करने में थोड़ा दिक्कत रहता है, और अगर ये जॉब आ गई मुझे तो मुझे आफ्टर 5 मुझे फैमिली टाइम में दे सकती हूँ। ठीक है, या फैमिली टाइम में दे सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं आपका आंसर वो जो जॉब के लिए इंटरव्यू में जा रहे हो, ठीक है, जिस जॉब के लिए आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो उसमें आपको उसके बारे में ही घुमा फिरा के बोलना है कि सर जो मैं जब से ये जॉइन जब से मुझे जॉब की ये ऐड आई है तब से मैं एंथुसियास्टिक अप्रोच रख रही हूँ, मुझे पहले से ये जॉब की वेट थी, ये मुझे पहले से ही एकेडमिक्स में इंटरेस्ट है, उसके बारे में ही बोलना है। ठीक है, आपको थोड़ा नेगेटिव क्वेश्चंस भी पूछेंगे कि अगर आप ये जॉब को ज्वाइन कर लोगे, मतलब आप अगर जॉब में सिलेक्ट हो जाते हो इस पोस्ट के लिए तो आप आपका क्लिनिक बंद कर दोगे। ठीक है, तो ये भी आंसर कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि क्या करोगे आप, क्या नहीं करोगे। ठीक है, एक मिनट हमारा। ठीक है, तो हम थे कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस पर। यहाँ तक कोई आपको डाउट हो तो मुझे बताइए। ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएगा एप्लीकेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी देखो ये थोड़ा लॉजिक टाइप है कि आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो तो आपको पता ही है पहले से ही, तो उसका कैसा बेस्ट आंसर देना है वो आपको बताना है। पहला वाला था इंट्रोडक्शन, अब उसमें से ही हम अलग अलग टाइप के आंसर्स आ रहे हैं। अगर आपने बोला कि आप जॉब कर रहे हो तो उसको पूछेंगे कि ये जॉब छोड़कर आप ये नई जॉब क्यों लेना चाहते हो। फिर अगर आपका क्लिनिक है तो वो बंद करके क्यों छोड़ करना चाहते हो नई जॉब। ठीक है, फिर अगर आप फीमेल्स हो तो आपको ये भी पूछेंगे कि ये फीमेल की तरह आप ये हैंडल कर पाओगे जॉब, कैसे कर पाओगे। तो आप बोलोगे कि सर मुझे पहले से ही आदत है, ड्यूरिंग माय एमबीएस आल्सो आई हैड अ गुड स्किल ऑफ टैकलिंग ऑल द रिस्पांसिबिलिटीज वेरियस टास्क। तो आपको इलेबरेटिव आंसर्स देना है। ठीक है, कि with all the task, with all the dissertation work, thesis work, I could give ample time to both my family as well as my college also. So it is my good privilege that I will be able to handle this pressure if I am selected for this job. ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो। आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि आपके पास चाइल्ड है तो आप उसका कैसा ध्यान रखोगे। तो आप ये भी बोल सकते हो कि माय फैमिली इज कोऑपरेटिव, मेरे पति मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, भले नहीं रखते हैं। ठीक है, मेरे हस्बैंड कोऑपरेटिव है, मेरे फैमिली कोऑपरेटिव है, तो ये सब लोग मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं कि अगर आप जॉब करना चाहते हो तो कर सकते हो। हम लोग कोऑपरेशन के साथ एक फैमिलियल जो बिहेवियर होता है वो प्रमोट करके हम आपको जॉब करने में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। तो ऐसा भी आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे बोलेंगे कि सर मैं बच्चे को ही लेकर कॉलेज में आ जाऊंगी या आ जाऊंगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो आप आंसर दोगे ना तो उससे आपको पता चलता है कि आपका फैमिली और आपके हस्बैंड पति देव दे आर अग्रीइंग विथ योर डिसीजन विथ दिस जॉब। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके घर पे भी ये माहौल है कि अगर आपको ये जॉब लगती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जॉब सिलेक्शन में। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है अलग रूप से, और आंसर कहीं ना कहीं आपको ऐसा देना है कि आपको उनको बोलना है कि सर ये पहले से हमको पता है कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन एज ए फीमेल आई हैव अ गुड हैबिट ऑफ, आई हैव अ गुड परफेक्शन इन हैंडलिंग ऑल दिस ड्यूटीज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
फिर लास्ट में आता है कि इंट्रोडक्शन में आपने अगर बोला होगा कि सर मैं भावनगर से हूँ, मैं पंजाब से हूँ, मैं सूरत से हूँ, या फिर मैं अहमदाबाद से हूँ, ठीक है? तो ये कोई भी जगह के बारे में आपको पूछेंगे, क्यों पूछेंगे? उनको आपका अवेयरनेस देखना है। आप डेंटिस्ट तो बन चुके हो, लेकिन जो बीच में सर बैठे थे, जो मेन स्टाफ होते हैं डेंटल पीएससी के, जो नॉन डेंटल होते हैं, जो नॉन मेडिको होते हैं, उनको आपके बारे में जानना है कि आप जिस जगह से आ रहे हो, भावनगर से, सूरत से, नडियाद से, उसके बारे में क्या क्या फेमस है। ठीक है, तो मुझे बताइए, आप अहमदाबाद के हो ऐसा सोचकर, कि अहमदाबाद में क्या क्या फेमस है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन ऐसा इसलिए पूछते हैं इंट्रोडक्शन के बाद कि आपको थोड़ा प्रेशर रिलीज हो जाए, एंजाइटी चली जाए, और आप थोड़ा फेमिलियर हो जाओ। इसका आंसर आप गुजराती में भी दे सकते हो, क्योंकि ये लोग आपको गुजराती में ही पूछेंगे कि અમદાવાદ વિશે તમને શું શું કંઈક નવું લાગે છે, શું શું માહિતી છે. In the previous interviews, they were asking questions about the route. From which route did you come to GPSC building? कौन कौन से सर्कल आए थे, उसमें सर्कल के बीच में क्या क्या था, उस सर्कल का नाम क्या था। ठीक है, तो ये सब चीजें गुजराती में आपको पूछेंगे ताकि आप फैमिलियर हो जाओ, और आपका जो प्रेशर होता है इंटरव्यू वाला, एंग्जाइटी वाला, वो सब रिलीव हो जाए। आपको थोड़ा फैमिलियरिटी हो जाए कि ये सब जो बैठे हैं वो कोई डांटेंगे नहीं, और आपको थोड़ा आंसर्स देने में अच्छा रहे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इंटरव्यू एक ऐसी चीज है कि आपको पूछा जाएगी क्वेश्चंस बहुत दिशा में, और आपको आंसर्स भी मल्टी डायरेक्शन में देना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन पूरा हुआ। अगर आपको इंट्रोडक्शन में कोई डाउट है, तो आप नीचे जो टाइप योर डाउट्स का सेक्शन है, वहां पे आप डाउट्स टाइप करके बोल सकते हो। ठीक है, कोई डाउट तो मुझे बताइए। कुछ लोग इंटरव्यू में आते हैं तो इंट्रोडक्शन गुजराती में देते हैं, हिंदी में देते हैं, इंग्लिश में देते हैं, वो सब सही है। लेकिन एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आपको लेक्चर्स लेने की भी स्किल होनी चाहिए। तो वो तो इंटरव्यू में जब आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे मुझे इंग्लिश बोलना ही सही रहेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि गुजराती में देते हैं तो फेल हो जाओगे। आपका कमांड होना चाहिए स्पीच के ऊपर। आप परमिशन भी मांग सकते हो कि सर कैन आई एक्सप्लेन दिस इन गुजराती इफ यू डोंट माइंड सर, प्लीज अलाउ मी टू स्पीक इन गुजराती, प्लीज अलाउ मी टू स्पीक इन हिंदी। ये सब आप परमिशन मांग सकते हो। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन का पहला क्वेश्चन आपका पूरा हुआ, आप क्या क्या आंसर दोगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आया कि आप जो जॉब करने वाले हो उसके बारे में आप क्या क्या जानते हो। ठीक है, आपको ये जो जॉब है उसके बारे में आप क्या क्या जानते हो, आपका क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या टास्क होंगे, आप कैसे लेक्चर्स लोगे, उसके बारे में आपको पता है कि नहीं। तो आपको पूछेंगे तो आपको बोलना है कि सर हाँ, ड्यूरिंग माई एमबीएस इन दिस गवर्नमेंट कॉलेजेस आई already faced this situation. We were given many tasks during inspection. So we were the pillars during inspection. We were handling all this stuff regarding lectures, regarding these demonstrations, regarding pre-clinics, regarding this biodata. All this stuff we are already familiar during our MDS time. So we are very thankful to our teachers, those who have made us familiar with this job.
So if I'm given this job, there will be nothing new which I'll be facing. So it's a good thing on my part that I'll be starting taking lectures from the first day if I'm allowed. I'll be doing all the works, whatever my seniors are giving. I will be able to tackle all the students' doubt. I will be able to guide them with easy language in which they are able to understand. So all these things you have to explain in elaborative. ठीक है? Many times what happens, आपको पूछा जाएगा कि आपको पता है ना कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में क्या करना होता है, तो बच्चे बोलेंगे कि हाँ सर हमको लेक्चर लेना होता है। यस सर, सही है, हमको क्वेश्चन भी करने होते हैं, बट दीज आर नॉट द आंसर्स दे एक्सपेक्ट। यू हैव टू गिव डिटेल्ड आंसर्स। ठीक है, आप कैसे तैयार हो, आपने कैसे कैसे एक्सपीरियंस किया हुआ है, और आप ये अगर जॉब में उस एक्सपीरियंस का क्या क्या फायदा लोगे, उसका क्या क्या नॉलेज आपको इम्प्लीमेंट करोगे, ये सब कहीं ना कहीं आपको आंसर में देना होगा। ठीक है, तो ये आंसर आप सही दोगे तब जाके आपको नया क्वेश्चन फिर आएगा। ठीक है, अब ये जितने भी क्वेश्चन है ना, वो सब क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? डेंटल जीपीएससी के स्टाफ जो नॉन डेंटल है, क्योंकि अभी तक तो डेंटल वाला पोर्शन चालू ही नहीं हुआ है। ठीक है, ये तो आपका पर्सनालिटी, एटीट्यूड, ठीक है, वही मैटर करता है, और वो इसलिए वो सब स्टाफ जो है नॉन डेंटल, जो मेन सर है आपके मेन एक्सपर्ट है, वही ये सब क्वेश्चंस पूछेंगे। इंट्रोडक्शन, आपके सिटी के बारे में, आपकी जॉब के बारे में, आपको पिछली जॉब क्यों नहीं पसंद, आपको क्लिनिक क्यों नहीं पसंद, ठीक है, आपको सिटी क्यों नहीं पसंद, आपको पता है ना कि आप अहमदाबाद जामनगर में ही जॉब है, आप क्या अपने हिसाब से वो सेटल कर पाओगे, आपकी फैमिली है वलसाड़ में, तो आप क्या अहमदाबाद शिफ्ट हो जाओगे, आप सूरत शिफ्ट हो जाओगे, ये बहुत ना मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपकी पर्सनालिटी और आपको जॉब विलिंगनेस के बारे में पूछे जाएंगे। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। सो डेंटल एक्सपर्ट जो होंगे वो डेंटल का नॉलेज चेक करेंगे, लेकिन जो बाकी के फीचर्स होंगे ना, वो आपके मेन जो एक्सपर्ट होंगे वही चेक करेंगे। और ऐसा माना जाता है कि एक्सपर्ट एक बार इंप्रेस हो गया ना, तो आपकी सीट पक्की, क्योंकि डेंटल का तो आपको नॉलेज आता ही है, ये तो आपको आता ही है। ठीक है, इसके बारे में तो कोई, आप एमडीएस हो, दूसरे भी एमडीएस होंगे, तो कोई इसमें वेरिएशन नहीं आएगा, लेकिन इसमें जो मार्क्स होते हैं ना, वो बहुत ही आपको डिफरेंस दे सकता है, क्योंकि ये जो एक्सपर्ट ने आपको इवेल्युएट किया है, वो आपकी पर्सनालिटी, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपका जजमेंट, आपका इम्प्लीमेंटेशन, आपका एटीट्यूड, आप कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी टैकल करते हो, आप नई नई चीजें सीखना कैसे चाहते हो, क्यूरियोसिटी है आप में अवेयरनेस है, ये सब वो एक्सपर्ट के क्वेश्चंस पूछने के बाद उनको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको पूछा कि भाई सूरत है, उसमें क्या फेमस है, आपको नहीं आंसर आया, तो इट इज ए नेगेटिव साइड ऑन यू, कि सूरत के बारे में पता नहीं तो ये क्या करेंगे आगे जाकर। ठीक है, क्योंकि आप सूरत में रहते हो, तो ये कहीं ना कहीं आपका इंटरव्यू मोस्टली पहले 2-3 क्वेश्चंस में ही पूरा हो जाता है। ठीक है, बाकी तो डेंटल नॉलेज की एक फॉर्मेलिटी रहती है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। फिर आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको पहले इंट्रोडक्शन पूछ लिया, ठीक है, फिर क्या पूछा, आपके पास जॉब है तो क्यों छोड़ना, ये जॉब छोड़कर नई जॉब लेना चाहते हो, क्लिनिक है तो क्यों बंद कर नया क्लिनिक करना चाहते हो, आप फीमेल है तो कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करोगे, आपके सिटी के बारे में बताइए। ये सब क्वेश्चंस पूरे हुए, फिर आपको जॉब के बारे में पता है कि नहीं, टाइमिंग के बारे में पता है, क्या क्या काम करोगे, क्या आप कर पाओगे, ये सब। ठीक है, अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हम आपको जॉब क्यों दे, और वाई वी शुड सिलेक्ट यू फॉर दिस जॉब। ठीक है, आपको हम क्यों सिलेक्ट करें, आप में ऐसी क्या खास बात है। ठीक है, एमडीएस तो सब लोग है, सब लोग डेंटिस्ट है, ये आपके जितने भी फीचर्स अच्छे हैं, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, टास्क कंप्लीशन,
जजमेंट, डिसीजन मेकिंग। आप थोड़े टाइम में एप्टीट्यूड का जो यूज़ करके कोई भी सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम। आप लेक्चर्स अच्छी तरह से लेते हो, आपको रिसर्च में अच्छी तरह से आइडिया है, पब्लिकेशन करो कर सकते हो आप। फिर आप में एक ऐसा पोटेंशियल है कि आप कोई भी चीज़ होती है उसको ईज़ी बना देते हो। ये कहीं न कहीं आपका आंसर है, ठीक है? व्हाई वी शुड गिव यू जॉब। तो ये भी आपको नोट्स बनाकर ही रखना है, उसका आंसर आप क्या दोगे वो, ठीक है? फिर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप ये जॉब तो लोगे, फिर आपका क्या करियर गोल्स है? आगे कोई फ्यूचर प्लान्स है कि नहीं है? ठीक है? तो फिर घुमा फिरा के वही बोलना है कि सर मुझे एकेडमी पे इंटरेस्ट है, इसलिए थोड़ा रिसर्च करने का प्लान है, पेटेंट लेने का प्लान है। तो कोई ना कोई पेटेंट आप अपने डिपार्टमेंट का जो होता है, जो अपने सब्जेक्ट का, वो सोच के रखना है कि सर मेरा ये प्लान है कि अगर वो एसएमएफ के लिए ये डिस्क्लोजिंग जब यूज किया जाए ना हर एक पेशेंट में, तो उसको एक इंडिकेटर बन जाएगा। तो हम उसको पहले से ही अवेयर कर सकते हैं कि आपको टोबैको अवॉइड करना है ताकि कैंसर ना हो जाए। तो ऐसा जो आंसर है वो आपको नोट्स में बनाना पड़ेगा रिसर्च करके कि मैं ये पेटेंट पर काम करना चाहती हूँ। भले आप करना करोगे या नहीं करोगे वो सब अलग बात है, लेकिन ये आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, मैंने खुद एग्जाम में बोला था कि सर मैं म्यूकोरमाइकोसिस में पेटेंट लाना चाहता हूँ। म्यूकोरमाइकोसिस के जो पेशेंट है उनमें जोर चला जाता है। मैं तो प्रोस्टोडोंटिस्ट हूँ, इसलिए मैंने ऐसा बोला था कि सर मुझे पेटेंट में थोड़ा इंटरेस्ट है, रिसर्च में थोड़ा इंटरेस्ट है, मेरा भी पेटेंट एक प्लान कर रहा हूँ कि अगर जो चला जाए तो नया जो कैसे बनाए। तो इसलिए मैंने ऐसा प्लान किया है कि जब पेशेंट डेंचुलस होता है तो उसकी डिजिटल इंप्रेशन स्टोर करके रखना, और ये इंप्रेशन जब वो पेशेंट का जो चला जाए म्यूकोरमाइकोसिस से एक्सीडेंट से, तब वो डिजिटल इंप्रेशन से कैड कैम से नया जो बन जाएगा और वो पेशेंट का सेम टू सेम जो बन जाएगा और वो रिहेबिलिटेशन में काम आएगा। अब ये पेटेंट पर मैंने तो कभी वर्क किया नहीं है, मैंने खाली ये सोचा था और मुझे करना भी था, लेकिन बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं। तो इससे ये जो मैंने इंटरव्यू में आंसर दिया था उससे मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा थोड़ा अच्छा इंटरव्यू गया था, बहुत मार्क्स मुझे अच्छे मिले थे। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें काम में आती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि आपको कुछ ऐसा बोलना है कि आपका पोटेंशियल उसमें रिफ्लेक्ट हो। पेटेंट करना कोई वो छोटी बात, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पेटेंट का स्टेप्स, रिसर्च के लिए ग्रांट कहाँ से लाओगे, आपने क्या क्या सोचा है, उसके बारे में आप क्या क्या डिवाइस करोगे, कैसी परमिशंस लोगे, एथिकल क्लियरेंस होंगे। तो अगर पूछा जाए कि आप क्या पेटेंट कैसे करोगे, तो ये आपके पास मौका मिल गया आपको आपका पोटेंशियल दिखाने का। तो कहीं ना कहीं आपको पेटेंट भी बोलना है आपके आंसर्स में। तो फिर आपको पूछेंगे कि आपको कोई पेटेंट भी अभी तक किया है या करने वाले हो, तो तुरंत आपको बोलना है कि हाँ सर, मैं एक पेटेंट करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, ये उसके प्लान से, ये मैं भी WHO या इसके पास फंड के पास मैं प्रोजेक्ट रखने वाला हूँ या रखने वाली हूँ। लेकिन अगर ये जॉब मुझे मिल जाती है तो मेरे लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा, क्योंकि कोई भी कॉलेज में रिसर्च यूनिट होता है, तो ये रिसर्च यूनिट के साथ में कोलैबोरेशन में मैं पेटेंट का ये प्लानिंग कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चलो मानो कि हमने आपको सिलेक्ट कर लिया, तो व्हेन विल यू ज्वाइन। अब कुछ लोग क्या होता है कि लक्ष्मी आती है और मुंह धोने चले जाते हैं। तो इसका आंसर तो यही हो गया कि सर आई विल ज्वाइन इमीडिएटली। ठीक है, आई एम विलिंग टू ज्वाइन दिस इमीडिएटली। जो भी मेरा क्लिनिक होगा वो मैं तुरंत ही शट डाउन कर दूंगा। आपको तो इंटरव्यू में बोलना ही नहीं है कि मेरा क्लिनिक था। ठीक है, वो बोलोगे तो आपको दिक्कत है। अभी तो आपको यही बोलना है कि सर अभी मैं कुछ कंसल्टेशन कर रही हूँ, अगर ये जॉब मुझे मिला तो मैं डायरेक्टली ये जॉब ज्वाइन कर लूंगी, मुझे कोई ऑब्स्टेकल है नहीं, क्योंकि अभी मेरा कोई अटैचमेंट कोई भी कॉलेज के साथ है नहीं। अगर कोई कॉलेज के साथ अटैचमेंट है तो आपको बोलना है कि सर बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट मैंने ऑलरेडी एनओसी ले लिया है और मुझे अभी
कोई दिक्कत नहीं होगी ये जॉब को इमीडिएटली ज्वाइन करने में। ठीक है, तो ऐसा आंसर आपको देना है। ठीक है, तो ये भी आपको देना है कि मैं पहले से ये डेडिकेटेड हूँ जॉब के लिए, तो इसमें मैं कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा जॉब करने के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ये थोड़ा डायरेक्शन बदलने की कोशिश करेंगे आपका माइंड, कि आपको ज्वाइन करना है और आपके हस्बैंड मना करते हैं तो क्या करोगे। तो आपको वही आंसर देना है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कि सर हमारे जब मैंने प्रिपरेशन की थी ये प्रीलिम की, तब मैंने ऑलरेडी अपने फैमिली के साथ बैठकर थोड़ी बातचीत कर ली थी। ये जॉब बेहतर है, हमारे प्लेटफॉर्म ये जो हमारी फैमिली के लिए भी अच्छा है, मेरा करियर के लिए भी अच्छा है, मेरा रिसर्च के लिए अच्छा है, पेटेंट के लिए अच्छा है। तो मेरे हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरी फैमिली सब कोऑपरेटिव है, और हमारा एक ही यूनिफॉर्म या यूनानिमस डिसीजन है कि मुझे जॉब करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। कोई भी जो होगा प्रॉब्लम्स, वो हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ये जॉब को हम अ, करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो कभी कभार आपको ये पूछेंगे कि आपको वलसाड़ के हो, तो आप थोड़ी अहमदाबाद आओगे जॉब करने के लिए। तो आपको ये भी बोलना है कि सर मुझे मेरा स्टडी अहमदाबाद हुआ है, तो मुझे पहले से अहमदाबाद में रहने का मन था, लेकिन मेरी फैमिली भी वहाँ थी और जॉब नहीं थी, इसलिए मैं वहाँ पे कंसल्टेशन कर रही थी और ये जॉब की वेट कर रही थी। लेकिन अभी प्लेटफॉर्म मिल गया है कि मुझे अभी ये अहमदाबाद शिफ्ट होने में भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरा फैमिली ऑलरेडी ये प्लान कर चुका है। ठीक है, हमारी फैमिली टोटली कोऑपरेटिव है। ऐसा आपको आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट तो मुझे बताइए। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। तो अभी तक कोई डाउट हो, आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में आया तो मुझे बता सकते हैं। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि आपको जो आंसर देते हो ना, उसमें से नए क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से पूछेंगे। तो बी केयरफुल, टू द पॉइंट बट इलाबरेटिव, और जो आपको आंसर्स पता है वही चीज बोलना है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया आपने कि पेटेंट में कैड कैम्प करूंगा, ये करूंगा, तो आपको कैड कैम्प के बारे में सब पता होना चाहिए कि कैड कैम्प क्या है, वो अभी क्या क्या कर सकता है। ठीक है, मशीनिंग क्या है, मिलिंग क्या है, अभी कौन कौन से नए रोबोटिक्स इंस्ट्रूमेंट आए हैं डेंटिस्ट्री में। तो ये कैड कैम्प बोल दिया तो इसका मतलब ये कि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंटरव्यू में इतने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछ भी सकते हैं, और अगर आपका इंट्रोडक्शन ही सही नहीं है तो आपको कम क्वेश्चंस पूछ के आपको जाने देंगे। ठीक है, फिर कहीं ना कहीं आपको ये भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आपने एमडीएस किया है, आपने कंसल्टेशन भी किया है, करते हो, आप क्लिनिक भी चला सकते हो, आप में अच्छा पोटेंशियल है, तो फिर ये जॉब क्यों करते हो। ये तो उन लोगों के लिए है जिनके पास कुछ है नहीं। ठीक है, क्लिनिक नहीं है, कंसल्टेशन भी नहीं कर सकते हैं, तो आपको ये डिटेरिएट करना चाहते हैं आपके माइंड को। तो आपको ये बोलना है कि सर मैंने एमडीएस ही इसलिए किया है कि मुझे पहले से एकेडमिक्स में इंटरेस्ट था, रिसर्च, पब्लिकेशन,
पेटेंट, ठीक है? मुझे अप टू डेट रहना है अपने सब्जेक्ट के साथ, तो जो भी मैं पढ़ाती हूँ वो मैं नए-नए एडवांसमेंट के साथ अप टू डेट रहूँगी। मुझे नया-नया जानने को मिलेगा, बच्चों को भी मैं ठीक तरह से सिखा सकूँगी। तो ये सब आपको आंसर में देना है, ठीक है? अब ये आपके बेसिक जो क्वेश्चंस थे इंट्रोडक्शन वाले, जो आपको इम्प्रेस करना है, जो आपका मेन कोर है, वो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इंटरव्यू का जो कोर है, मेन मार्क्स लाना, वो यहाँ तक है, ठीक है? आपकी पर्सनालिटी और एप्टीट्यूड, एटीट्यूड सब आपको उसमें पता चल गया। अभी तक जो एक्सपर्ट ने क्वेश्चंस पूछा उसमें, ठीक है? अब आपको इवेल्युएट करना है। वो कैसे इवेल्युएट करेंगे आप एक्सपर्ट पैनल्स? आपको कंटेंट कितना पता है वो, ठीक है? उसके बारे में आपको आंसर देना है। जैसे मैंने बताया ना अभी किसी के बारे में, जैसे एमिलोब्लास्टोमा के बारे में बताया था, तो उसको कंटेंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है? फिर सेल्फ रिफ्लेक्शन, आपको ऐसा आंसर देना है कि आप नए-नए जानने को पता चलता है आपको, ठीक है? फिर डिलीवरी क्वालिटी, आप कैसे कोई भी चीज़ को डिलीवर करते हो, ठीक है? आपका कॉन्फिडेंस है, आप कैसे उसको एक्सप्लेन करते हो, लेक्चर्स कैसे लेते हो और सजेशंस, ठीक है? आप कभी-कभार अगर पढ़ाना चाहते हो तो आप सजेशंस भी दे सकते हो, ठीक है? और इंटरव्यू स्किल्स, हम आपको जो सभी सिखा रहे हैं वो आपको एक सजेशंस के तौर पर ही देख सकते हैं, ठीक है? आपको इंटरव्यू लेंगे ना, तो पहले हम आपका कंटेंट पर फोकस करेंगे। आपका कितना इंट्यूशन है, अंदर कंटेंट कितना है, सेल्फ रिफ्लेक्शन कितना है, पर्सनालिटी कितनी है, वो सब आप कैसे कोई भी चीज़ को टैकल कर सकते हो और फिर आपको हम सजेशंस देंगे, ठीक है? अब कैसे करना है? तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको नोट्स बनाना है। मैंने जितने भी क्वेश्चंस अभी बताए वो आपको लिखकर मुझे बताना है, उसको आंसर कैसे करोगे बेस्ट, और वो आपको अकेले-अकेले बोलने की भी आदत पाड़नी होगी, ठीक है? एक बच्चा आया था पिछली बार जो गुजराती मीडियम का था, तो मैंने पहले इंटरव्यू लिया ना तो उन्होंने गुजराती में ही इंट्रोडक्शन दिया। फिर मैंने बोला कि एक काम करिए, जो भी इंग्लिश के सेंटेंसेस है ना इंट्रोडक्शन वाले, वो आप मुझे इंग्लिश में लिख कर रट कर मुझे बताइए। तो उन्होंने 4-5 बार बोला ना तो वो रट लिया और इंट्रोडक्शन उसका इंग्लिश में हो गया। तो पर्सनालिटी इंग्लिश में इंटरव्यू दिया तो वो पहले से ही अच्छा हो गया, ठीक है? तो ऐसा मॉडिफिकेशन हम ये मॉक इंटरव्यू के बारे में बाद आपको पता चलेगा। यूज अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है? तो आपको क्या करना है, कोई भी आप आंसर बताते हो तो उसके अलग अलग बहुत सारे आंसर्स होते हैं, तो आपको रिसेंट एडवांसमेंट्स होनी चाहिए। ऑनलाइन आपको अलग अलग आंसर्स के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, हम भी देंगे, ऐसा नहीं कि हम नहीं देने वाले, ठीक है? क्योंकि हमने ऑलरेडी आपके लिए एक नोट्स बना के रखा है, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये वाले नोट्स हमने ऑलरेडी बना के रखे हैं आपके लिए, ठीक है? कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कैसे आपको आंसर्स देना है, ठीक है? तो देखिए लिमिटेशंस ऑफ सीबीसीटी, कॉन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी की लिमिटेशंस क्या क्या है? एक तो रेडिएशन डोज हमको ध्यान रखना है, फिर इमेज के आर्टिफैक्ट्स आते हैं, कॉस्ट भी आता है, तो ये रेडीमेड आपको आंसर हम दे रहे हैं, ठीक है? तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसके मेन मेन आपको टॉपिक्स याद कर लेने हैं, ठीक है? फिर रेडिएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स आप क्या क्या रखोगे, ठीक है? तो आपको बोलना है कि क्या क्या होगा। तो यहाँ पे पहले एलरा प्रिंसिपल होगा, ठीक है? जितना हो सके उतना रेडिएशन कम देना है। कॉलिमेशन, आपको बीम की साइज को कॉलिमेट करना है, कम करना है। फिर पेशेंट की सेफ्टी के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए एप्रन्स, थायरॉइड कॉलर्स यूज़ करना है, ठीक है? फिर फास्ट फिल्म और डिजिटल सेंसर्स, अलग अलग स्पीड की फिल्म आती है, वो ध्यान रखना है। प्रॉपर टेक्निक यूज़ करोगे, पेशेंट एजुकेशन,
रिकॉर्ड कीपिंग करोगे, ठीक है। ये प्रॉपरली आपको शेप करके आंसर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये बहुत काम की चीज है, ठीक है। अगर प्रिंसिपल्स आपको समझाने के लिए बोला जाए तो आप क्या क्या आंसर दोगे, ठीक है। फिर रेडिकुलर सिस्ट और पेरिडोन्टल एब्सेस के बीच में आपको क्या-क्या डिफरेंशियल देखने को मिलेगा। तो लोकेशन, शेप एंड साइज, बोन डिस्ट्रक्शन, एसोसिएटेड टूथ, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखकर आंसर देना है। तो यहाँ पे देखो, आपको ये पूछा गया कि ये ए टाइप की चीज और बी टाइप की चीज, उसमें क्या डिफरेंस है। तो ये लोग ऐसा नहीं बताते हैं, ये लोग क्या करते हैं, उसके मेन पॉइंट्स बोलते हैं कि first I would like to differentiate between the location, then shape and size, and bond destruction and associate tooth. ऐसे आपको एग्जाम में पूछा जाए इंटरव्यू में, डेंटिग्रस सिस्ट और ओकेसी, वो दोनों में क्या डिफरेंस है, तो सेम पैटर्न यू हैव टू आंसर। पहले आपको बताना है कि उसकी डेफिनेशन, क्लिनिकल फीचर्स, etiology, histopathology. In this sequence, you have to completely elaborate both the topics, and this will create a best impact on the expert panel. You will get the best marks. ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है आंसर देने में, ठीक है। तो ये हमने आपके लिए बना के रखा है, जो भी लोग जुड़ेंगे हम आपको वो ये नोट्स देने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे कैसे कैसे आप प्रिपरेशन करोगे। तो आपको प्रैक्टिस करना है, एक तो लिख के प्रैक्टिस करना है जो आप बोलने वाले हैं वो, ठीक है। फिर वो कॉन्स्टेंटली आप अकेले अकेले आप बोल के भी याद रखना है, ताकि जब भी आप इंटरव्यू में जाओ तो बोलने में दिक्कत ना हो। फिर आपकी हैंड मूवमेंट्स कैसी होनी चाहिए, आपका एक्सप्रेशंस कैसा होना चाहिए, आप कहाँ पे पोज लोगे, वो सब इम्पोर्टेंट है। आपको ऑनलाइन सोर्सेज से भी आपको अच्छे अच्छे आंसर्स मिल जाएंगे। फिर मॉक इंटरव्यूज आप अटेंड करोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि आप रियल इंटरव्यू में आ रहे हो, और आपका एंजाइटी और जो प्रेशर वो चला जाएगा, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चंस के अलग अलग आंसर सब लोग देंगे, वो आप देखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये आंसर मैं ऐसे देता तो भी मुझे अच्छा लगता। तो जैसे मैंने भी बताया ना थोड़ी देर पहले, आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, क्या कि रेडिकुलर सिस्ट और पेरिडोन्टल एब्सेस के बीच में क्या डिफरेंस है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ऐसे ही 2-3 पॉइंट्स बोल जाएंगे, लेकिन आपको जो मेन मेन फीचर्स है, लोकेशन, शेप एंड साइज, बॉन्ड इंस्ट्रक्शंस, एक की पॉइंट्स आपको क्लियरली याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है आपके आंसर्स में, बिकॉज यू आर अ डॉक्टर एंड यू विल बी गोइंग टू टीच स्टूडेंट्स। So whenever you answer, you have to be elaborative, you have to be proper in content, and you have to be confident about your answer. ठीक है, क्योंकि आपको प्रॉपर बैकअप होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू दिस इज द करेक्ट आंसर। अलग अलग क्वेश्चंस के अलग अलग आंसर होते हैं, ठीक है। तो अब आता है हमारा डेंटल वाला पोर्शन, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है हमारा डेंटल का पोर्शन। उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी ब्रांच हो, तो उसमें ये जितने भी प्रोफेसर लोग हैं, जितने भी हमारे सीनियर रिस्पेक्टेड सर है, मैडम है, उनको ये फेवरेट क्वेश्चन है एडवांसमेंट्स के बारे में। तो ये नहीं पूछेंगे कि लूकोप्लाक क्या क्या है, लाइकन प्लानस क्या है, ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजी है, उसमें क्या क्या एडवांसमेंट्स आया है, कैड कैम है, ये है वो है, वो सब एडवांसमेंट्स और रिसर्च, उनका ये फेवरेट टॉपिक होता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर कट नए नए एडवांसमेंट्स इन ईच एंड एवरी फील्ड, इन रेडियोलॉजी, इन सिस्ट, इन ट्यूमर्स, इन टेक्निक्स, इन हिस्टोपैथ, in this biochemic, this immunology, etc. All these aspects where there are latest advancements or research, you must be able to tell them कि सर ये advancements आए हैं, ठीक है। अभी जैसे कि डिजिटल इम्प्रेशन आया है, वास्तव में अगर हम बोलेंगे तो सर डिजिटल इम्प्रेशन आया है, ठीक है।
ये बोल सकते हैं। फिर नए नए क्राउन्स आए जो जिनकी प्रॉपर्टी अच्छी है, ठीक है। विनियर्स नई नई क्वालिटी के आए हैं, नई नई रेजिन सीमेंट्स आई है, तो ये सब हम बता सकते हैं। प्रोस्टो का आंसर होता है तो, ठीक है। पेरियो का होता है तो कोई नई नई टेक्निक आती है, लेजर्स आ गए, ये सब हम बता सकते हैं। तो आप ये लेजर है, ये तो कॉमन है, तो ये भी आप बता सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप ये आंसर बोलोगे तो फिर लेजर के बारे में पूछेंगे, लेजर का फुल फॉर्म, कौन कौन से लेजर यूज होता है। तो ऐसे जो भी आप बोलोगे ना उसका डिफेंड करना आपको आना चाहिए, उसका कंटेंट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, कोई भी आप डेंटल का क्वेश्चन का आंसर देते हो तो आपको प्रॉपरली बैकअप के साथ देना है, प्रॉपर रेफरेंस के साथ देना है, ठीक है। जैसे कोई बोलता है कि एवल्स टूथ है प्राइमरी, एक दूध का दांत प्राइमरी टूथ एवल्स हो गया, तो उसको रिप्लांट करना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो दो तीन थियरी है। पहले लोग ऐसे बोलते थे कि दांत प्राइमरी हो या परमानेंट उसको रिप्लांट करना चाहिए, इम्प्लांट, ठीक है। तो वो अपनी तरह से सेट हो जाएगा। फिर कुछ लोगों ने बोला कि वो नहीं करना चाहिए क्योंकि रिजॉर्प्शन हो जाएगा और एंकालोसिस हो जाएगा। तो ये आपको जो लोग बोल रहे हैं वो लोग नहीं बोलना है, आपको प्रॉपरली बोलना है कि ये कॉन्फ्रेंस थी, ये एसोसिएशन था, ये लोग ऐसा बोल रहे हैं। और अभी जो रिसेंट कॉन्फ्रेंस हुई 2010 की या 2015 की, उसमें एसोसिएशन जो थी पीडियाट्रिशियन वाले, उन्होंने ये नक्की किया, डिसाइड किया कि हम प्राइमरी टूथ को इम्प्लांट करने वाले नहीं है, क्योंकि वो एंकालोसिस हो जाते थे या फिर रिजॉर्प्शन हो जाता था। तो ऐसा आंसर आप बोलोगे कि पहले ये था वो था, इसका रेफरेंस ये है वो है, तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉपर रीडिंग भी पता चलेगा। तो ये बैकअप वाला आंसर आपको हमेशा देना है, रेफरेंस भी देना है, ठीक है। नियोप्लाज्म का डेफिनेशन आप बोलते हो, ठीक है, तो आपको बोलना है कि अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट, ठीक है। ये आपको बोलना है कि ये साइंटिस्ट ने ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। कोई भी सिस्ट फॉर्मेशन है, कोई भी मैकेनिज्म है, कोई भी थियरीज है, वो सब आपको साइंटिस्ट रेफरेंस उसके हिसाब से देना है, ठीक है। फिर आपको ये भी पूछ सकते हैं कि डेंटल में क्या क्या नया है और क्या क्या सर्वेस हुए हैं। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दो तीन सर्वे किए हैं। पहले ये सर्वे में मालूम पड़ा कि सबको क्या था, कैरीज था। फिर पता चला कि सबको पेरिडोंटल हेल्थ खराब है। फिर डेंटल के साथ कौन कौन से प्रोग्राम जुड़े हुए हैं, ठीक है। हमारा नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम है, फिर फ्लोराइड वाला है, ठीक है। ये सब प्रोग्राम्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमको ओरल हेल्थ इम्प्रूवमेंट करना है। तो फिर आपको ये भी पूछ सकते हैं कि ओरल हेल्थ का डे कब होता है, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में भी पता होना चाहिए, कब बना था, हमारा कौन सा एक्ट है, ये सब, ठीक है। फिर एथिक्स के बारे में पूछा जाएगा कि अगर फाइल सेपरेट हो गई आरसीटी के टाइम, तो आप क्या करोगे। तो हमारा एथिक्स ये बोलता है कि कोई भी ट्रीटमेंट के टाइम कॉम्प्लिकेशन होता है तो वो पेशेंट के लिए खराब भी होता है या सही होता है, डॉक्टर के लिए भी खराब होता है सही होता है, तो किसी के लिए भी खराब होता है सही होता है। लेकिन आपको सच बताना है पेशेंट को, उसकी लेमन लैंग्वेज में, उसको समझ में आए ऐसी लैंग्वेज में बता देना है कि ये हम ट्रीटमेंट कर रहे थे लेकिन ये मेरे से भूल हो गई है। और ये कॉमनली भूल होती है, ऐसा नहीं कि पहले आप भी पेशेंट हो ऐसे हुई है। तो इसके कॉम्प्लिकेशंस होता है तो हम उसका आगे जाके कोई ना कोई ट्रीटमेंट करेंगे। और कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है तो वो कहीं ना कहीं ऐसे ही रह जाएगा। बट दिस explanation is to be given to the patient in the words or in the language which is understood by the patient, ठीक है। तो ये आपका आ गया एथिक्स, ठीक है। फिर आपको बोलेंगे कि अभी डेंटल स्ट्रीम में ऐसी क्या क्या चीज है जो हमको पता नहीं, ठीक है, एक्सपर्ट को पता नहीं, डेंटल के स्टाफ को पता नहीं। तो अभी बहुत सारी चीज आ गई, जैसे कि फ्लॉस हम यूज करते थे, ठीक है, वो थ्रेड टाइप के थे, अभी वाटर फ्लॉस सिस्टम आ गई है। पहले हम इंप्रेशन लेते थे कंपाउंड से, ठीक है, अभी जो इंप्रेशन मेथड आ गई है वो डिजिटल वाली आ गई है। तो डिजिटल का एक फायदा ये है
कि वो डिजिटल से उसका जो भी रिकॉर्ड हो जाएगा, और वो डिजिटल जो इम्प्रेशन है उसकी हम बैंक भी बना सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर पेशेंट को अगर ट्रॉमा होता है, पेशेंट को तुरंत ही दांत को रिस्टोर करना होता है या फिर गनिंग स्प्लिंट बनानी होती है, तो कहीं ना कहीं ये डिजिटल इम्प्रेशन आपको काम में आएगी। ठीक है, तो इन शॉर्ट आज के लेक्चर में हमने जो आपको बताया ना, वो थोड़ा अलग ही बताया है। अगर आपने लेक्चर अटेंड नहीं किया होता तो कहीं ना कहीं आप इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स नहीं लाते हैं। तो हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। आपका जो इंटरव्यू होगा वो एक्चुअली पर्सनालिटी, ठीक है, आपका कैरेक्टर, आपका एथिक्स, आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो, आपका डिसीजन मेकिंग, आपका जजमेंट, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी, अवेयरनेस, ठीक है, और पोटेंशियल लास्ट में। ये शुरुआत के 3-4 क्वेश्चंस थे। इंट्रोडक्शन, आप क्यों जॉब करना चाहते हो, आपकी फैमिली अलाउ करेगी, आप सिटी शिफ्ट करना चाहोगे, क्या आप जॉब के बारे में पता है आपको, आप क्या हैंडल कर पाओगे प्रेशर। ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, वो ये चेक करेंगे। तो उसके लिए आपको ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने पूछे उसके डिटेल आंसर लिखकर मुझे भेजना है, और आगे जाके ये इंटरव्यू में भी काम आएगा। हम इंटरव्यू में यही क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन अलग तरीके से पूछेंगे। डायरेक्ट आंसर्स आपको नहीं पता चलेगा कि सर नहीं कैसे हमको ये क्वेश्चंस पूछ लिया। ठीक है, फिर डेंटल के क्वेश्चंस में आपको डेंटल के बारे में एडवांसमेंट्स, ठीक है, तो इन शॉर्ट पहले वाले जो क्वेश्चंस थे वो आपकी पर्सनालिटी एटसेट्रा चेक करने के लिए थे, डेवलप डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, ये सब। फिर डेंटल वाले क्वेश्चंस थे वो आपको एडवांसमेंट्स के बारे में, रिसर्च, पब्लिकेशन, आपका थीसिस कौन सा था, आपका डिसर्टेशन कौन सा था, आप नया नया क्या करना चाहते हो पेटेंट के बारे में, आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे लेक्चर, आपको लेक्चर देने के लिए भी बोला जाएगा। फिर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रीटमेंट प्लान ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या है, फिर कैसे आप मार्केटिंग या कैसे आप अवेयरनेस फैलाओगे। ठीक है, हमारी कौन कौन से डेंटल में सर्विस चालू है, कौन कौन से प्रोग्राम्स चालू है, अगर आपको ये जॉब दी जाएगी तो आप कैसे लेक्चर्स लोगे, आपका एथिक्स कैसा होगा। ठीक है, आप पेटेंट करोगे तो कैसे करोगे, रिसर्च करोगे तो कैसे करोगे। ये सब कहीं ना कहीं आपको डेंटल के बारे में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। ठीक है, तो आज का जो गाइडेंस लेक्चर है उसके बारे में हमने जो भी बताया वो आपको कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है आपके बारे में, और आपको ये जानना ज़रूरी था कि कभी ना कभी ये जो आंसर है वो आपको देने के टाइम पक्का याद होना चाहिए। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी चीज। पहले इंट्रोडक्शन में आपकी पर्सनालिटी, मैच्योरिटी, डिसीजन मेकिंग वो सब चेक होगा, तो आपको ध्यान से आंसर देना है। आपका कॉन्फिडेंस भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, आपका जो एटीट्यूड है वो भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है, फिर कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन में नॉलेज के बारे में भी पूछा जाएगा, तो वो डेंटल जीके होगा। ठीक है, फिर सिली क्वेश्चंस आते हैं, आपको हम क्यों सिलेक्ट करें वो भी आपको ध्यान रखना है। फिर ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि अलग सीनियर ने ये आंसर दिया, ये काम दिया, दूसरे सीनियर ने ये काम दिया, तो वो कैसे बायस को आप टैकल करोगे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज,
आपको कोई भी आंसर फास्ट नहीं देना है, जल्दी से नहीं देना है, स्लोली, टू द पॉइंट और इलाबोरेटिव, जैसे आप लेक्चर्स ले रहे हो, ठीक है, ऐसे आपको देना है, ठीक है। फिर एक बढ़िया टेक्निक है, अगर आपको आंसर नहीं आता है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए, आपको आंसर नहीं आता है, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि सर इन माय ओपिनियन आई एम नॉट श्योर बट दिस माइट बी द आंसर, ये एक तरीका है, ठीक है। सर मैंने ये पढ़ा भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आंसर है, ठीक है। और ये भी बोल सकते हो कि सर आई एम वेरी सॉरी, एट दिस मोमेंट आई एम अनेबल टू आंसर दिस, ठीक है। तो ऐसे आंसर भी आप दे सकते हो, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर कभी कभार ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो पूछते हैं ना, वो आपको ठीक में समझ नहीं आया होगा, या जल्दबाजी में आपने हाँ बोल दिया होगा लेकिन आपको पता नहीं होगा, तो आप ये भी बोल सकते हो कि आप सर बेग योर पार्डन, पार्डन सर, आई वाज अनेबल टू हियर द क्वेश्चन, ऐसे, ठीक है। फिर जब भी आप आंसर देते हो ना, तो आई कांटेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। कोई भी एग्जामिनर जो एक्सपर्ट होता है, इंटरव्यू के एक्सपर्ट, वो आपको क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको आई कांटेक्ट में ही आंसर देना है, उनके साथ भी आई कांटेक्ट बनाना है, अलग अलग स्टाफ जो बैठे हैं उनके साथ भी आई कांटेक्ट बनाना है, फेशियल एक्सप्रेशंस भी होने चाहिए, आपका लिप सिंक अच्छा होना चाहिए, आपका हैंड मूवमेंट्स भी अच्छा होना चाहिए, आप एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। फिर कभी कभार आपको आंसर पता नहीं है तो सीधा ना भी बोल सकते हो कि सर आई एम वेरी सॉरी, आई कैन नॉट आंसर दिस, ठीक है। तो अब कुल मिलाकर आज का इंटरव्यू का जो सेशन है गाइडेंस, वो हम यहाँ पे एंड करते हैं। और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, हम आपको फिर से ये भी कोई भी टॉपिक में आपको दिक्कत है तो आपको साथ रहेंगे आपकी इंटरव्यू के टाइम। लेकिन जो भी चीज़ है वो आपको लिख कर प्रिपेयर करना है, ठीक है, नोट्स राइट, आंसर्स ऑफ ऑल क्वेश्चंस डिस्कस टुडे, ठीक है। फिर हम आगे जाके वो चेंज भी कर सकते हैं, और आपको फ्लुएंटली बोलना भी आना चाहिए, ठीक है। तो कभी ना कभी हम भूल ये कर देते हैं कि हमारे डेंटल में डीसीआई जो है, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटिस्ट की एक्ट है, डेंटल के प्रोग्राम्स है, ठीक है, डेंटल के सर्वेस है, वो हम सबको पता होना चाहिए, क्योंकि यही तो चीज़ है जो दूसरे डेंटिस्ट, जो लोग ने कोर्स नहीं ज्वाइन किया हमारा, वो लोग को पता नहीं होगा कि क्या होगा इंटरव्यू में और कैसे आंसर्स देना है। तो ये आपको ठीक से ध्यान रखना है। अब मेन इंपॉर्टेंट थिंग, कोई भी सब्जेक्ट का आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको स्टरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। जो बेसिक्स हमारे हैं, स्टरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, सैनिटेशन, उसके बारे में आपको पक्का पता होना चाहिए। तो ये जितने भी टॉपिक्स मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको टिप ऑफ द टंग करना है, रटो तो रट सको तो रटो, याद रखो तो याद रखना है। लेकिन आपको इंटरव्यू के टाइम झिझकना नहीं है, हेजिटेशन नहीं रखना है, क्लियर कट आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो पहला इंटरव्यू होगा ना, वो 2 दिन के बाद होगा। आज हुआ है 13, हम 15 को 9 PM लाइव करेंगे इंटरव्यू, आपको जूम प्लेटफॉर्म पर से वो इंटरव्यू लेंगे, और वहां पे नहीं होगा तो गूगल मीट से लेंगे, ठीक है। इंटरव्यू में फेस टू फेस होंगे, हम सीधे आपके क्वेश्चंस पूछेंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे, आपका आंसर भी देखेंगे, आपका एटीट्यूड भी देखेंगे। फिर एट द एंड ऑफ इंटरव्यू हम आपको इवेल्युएट करेंगे और आपका मार्क्स देंगे। ऐसे 4 इंटरव्यू हम करवाएंगे। तो अभी आपका कोई सजेशन हो, आपको कोई डाउट्स हो, आपको कोई क्वेरीज हो, तो सीधा आप हमको व्हाट्सअप करके बता सकते हो। हमारे नीचे वेबसाइट पर भी है, ठीक है, इस पर मेल भी कर सकते हो, मेडिकल डेंटल एकेडमी @gmail.com, ठीक है। So guys, it's time for telling you bye bye. Have a nice time and good night.
तो गाइस, जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं लेक्चर, अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो और अगर आप पास हो गए हो हमारा ये इंटरव्यू देखकर, अगर आपको ज़रा सा भी थोड़ा हेल्प मिला हो, तो आपको ये वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और जितना भी हो सके उतने सब बच्चों को ये देना है, क्योंकि अभी डेंटल जीपीएससी की जो एग्ज़ाम आ रही है ट्विटर की, क्लास 2 की, सब में ये लेक्चर हमारा कायम रहेगा, हेल्प करेंगे। हमारी एक बात अच्छी है कि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो, नोट्स नहीं मिल रहा है, आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, कैसे उस आंसर को रिप्रेज़ेंट करें, हम आपको सब में पर्सनल गाइडेंस देंगे। हमारे पास इतने नोट्स है कि आप 1 महीने में ही सारे सब्जेक्ट के टू द पॉइंट आंसर्स क्लियर कट दे सकते हो। तो गाइज़, आपको अब अगर हमारा डेंटल नोट्स परचेज़ करना हो, तो एप्लीकेशन में जाकर डेंटल नोट्स वाला एक सेक्शन है, उसमें जाके आप आराम से वो परचेज़ कर सकते हो। सब नोट्स अवेलेबल है। डे बाय डे हम नए-नए नोट्स भी ऐड करते जाएँगे, तो वो सब आपको अभी वही प्राइस में मिल जाएँगे। एक्स्ट्रा आपको कोई पे करना नहीं है। अगर आपको ये इंटरव्यू का कोर्स जॉइन करना है, तो हमारी एप्लीकेशन में ये ऊपर का ही कोर्स है 199 वाला, मॉक इंटरव्यूज़ डेंटल जीपीएससी, उस पे आपको पे करके ये कोर्स जॉइन कर सकते हो। ठीक है? तो गाइस, इट्स टाइम फॉर टेलिंग यू बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम एंड गुड नाइट।